students, I started this channel to educate about better career opportunities to every student, and whoever are preparing for competitive exams or are trying to look for better career opportunities. It is my mission to bring the experienced candidates in that particular field, and we talk about them, about various challenges which they faced and what path they took to reach there. So this has been my mission to educate everyone regarding better career choices, because frankly not many avenues are present which help students to find to take informed career decisions. So my current expert which I have called for today's meeting is Palash. He is aerospace graduate of IT Bombay of 2013-2017 batch, and we are going to talk about his journey in aerospace, because he's also experienced in working with Boeing, and currently he's doing his masters from USA and pursuing a CFD from there. CFD stands for computational fluid diagrams, which is one of the advanced fields in aerospace engineering only. Now the objectives of this meeting are threefold. First of all is how to make better career choices in aerospace, because aerospace is a very vast field. How to go about what career to choose or what branch to choose in aerospace. This will be our first focus. Second will be US versus India as far as aerospace as a career is concerned, which we should choose, whether we should stay in India to pursue aerospace opportunities or we should go to US for aerospace opportunities. And the third focus will be the living opportunities of India and USA. So we're going to talk about each and everything in detail one by one to our guests, and we will see what he has to say about this aerospace as a career. And lastly, we are going to take his advice as to what the new aspirants must do to get a very good start in this career. In this meeting or session, I have tried to ask each and every question whichever I thought will be useful for all of you. But if anything has been missed out, please comment and let me know, and I will make it sure that I will ask our next guest about these questions. So please watch the entire video, enjoy the session, and if you love the video, please like and subscribe and stay tuned for more videos like this. Thank you. So hello, कैसा चल रहा है सब? बढ़िया भाई, लॉन्ग टाइम। कहाँ है तू आजकल? बहुत टाइम हो गया, मतलब 2017 2017 के yes. 2017 मतलब उस टाइम के बाद तो कन्वर्सेशन कम ही हुआ था अपना, मतलब वैसे वहाँ कॉलेज में भी उतना कन्वर्सेशन नहीं होता था। कॉलेज में भी कमी था, हाँ हाँ करेक्ट। तो हम मतलब मैं था हॉस्टल 3 में Right. और तुम हॉस्टल किसमें 5 थे? में 4-5 में थे। हाँ, मैं नहीं गया था कई बार, हाँ हॉस्टल में, इतना याद है मेरे को। हाँ तो वहां पर ज्यादा बात हो नहीं पाती थी, लेकिन बाद में मैंने देखा, पोस्ट देखी थी, मतलब तुम्हारा किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के शायद मैंने वो कोई पोस्ट देखी थी। हाँ, वो आई थिंक जब मैं मूव हुआ था तब की होगी। हाँ तो यहाँ अभी तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो मतलब देखा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ और हाँ मैं वो थोड़ा सा लोगों के लिए जो नया अवेयरनेस जो लोगों को चाहिए होता है कि करियर के लिए कितना होता है, करियर के बारे में क्या राइट क्या किए जा सकते हैं, तो उसके लिए जो लोग अच्छे करियर्स में हैं तो राइट या फिर जो जैसे अभी अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि मैं और क्वेश्चंस उसके बाद श्योर पूछूंगा, ताकि श्योर चलेगा आइडिया लग जाए मुझे। तो चलेगा एक ठीक है। सो इंट्रोडक्शन। हाँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट देन। या तो हाँ, मतलब मैंने बैचलर्स की थी आईआईटी बॉम्बे से, मतलब हम लोग साथ में ही थे उधर। उसके बाद आई मूव्ड, आई स्टार्टेड अ जॉब इन नॉन कोर, बट फिर वो सही से नहीं चला तो मैं वापस कोर में आ गया एंड आई जॉइन बोइंग इन इंडिया। तो 4 साल तक मैं बोइंग में था एज अ सीएफडी डेवलपर स्लैश इंजीनियर। एंड फिर वहाँ से फिर मतलब मेरा कोर में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया एंड आई वांटेड टू लाइक कंटिन्यू दैट। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया यूएस में एंड फिर मैं यूआईयूसी में आ गया एमएस करने एरोस्पेस में ही। एंड वो भी फोकस्ड मोस्टली सीएफडी फ्लूइड्स पे ही था एंड थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे। तो मेरा रिसर्च भी यहाँ पे टर्बुलेंस पे था फ्लूइड्स में। एंड फिर सिंस मैं सिमुलेशन कर ही रहा था, मतलब कॉलेज में भी सिमुलेशन यूज़ किया था, बोइंग में भी किया था, कॉलेज में भी किया था, इधर ग्रेड स्टडीज़ में। तो फिर यहाँ पे मतलब अभी मैं एंसिस में जॉब करता हूँ एज एन एप्लीकेशन इंजीनियर। एंसिस मेक्स द सॉफ्टवेयर फॉर फ्लूइड डायनामिक्स। तो हाँ, मतलब अभी मेरा सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर रोल है, वेयर आई हेल्प आवर क्लाइंट्स यूज आवर सॉफ्टवेयर
स्पेसिफिकली मैं मतलब CFD में ही प्ले करता हूँ यहाँ पे भी, जबकि इनके दूसरे भी सॉफ्टवेयर्स हैं। सो आई सपोर्ट अदर सॉफ्टवेयर्स आल्सो, बट मेनली मेरा बैकग्राउंड फ्लूइड डायनामिक्स में ही है इसमें भी। मतलब प्रोफाइल काफी इंप्रेसिव रही है, मतलब बोइंग इंडिया में काम करना मतलब बड़ी बात होती है। तो हाँ, ज्यादातर जो लोगों ने क्वेरी रखी थी ये करने के लिए कि एरोस्पेस में अगर कोई परस्यू करता भी है तो राइट, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। तो वो करेक्ट, क्या प्रोसेस रहता है कि मतलब इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई एरोस्पेस अगर चूज करता है एज अ फील्ड, तो व्हाट राइट, आर द अपॉर्चुनिटीज दैट पर्सन कैन परस्यू इन इंडिया? तो राइट, उसके राइट। बारे यार मतलब आई वुड से 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू स्टडीज। सो इंडिया में अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब लिमिटेड है, गेटिंग देयर इज डिफिकल्ट, बट अच्छे कॉलेजेस है। सो IITs में लाइक टॉप 4 IITs हैव एरोस्पेस, दिल्ली, कानपुर, मद्रास एंड आई थिंक खड़गपुर। एंड देन दूसरे कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, IIEST है, IIST है। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स लाइक यू कैन कंटिन्यू ऑन अ मास्टर्स और अ PhD एंड टेक द academic route। बट वही इंडिया में academic route इज डिफिकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड फंडिंग इज वेरी लिमिटेड। लाइक हमने देखा ही था IIT में भी प्रोफेसर्स के पास फंडिंग बहुत लिमिटेड रहती थी, प्लस अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल में जाना है तो फैसिलिटीज तो नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज है। तो कंपटीशनल में। में तब भी कर सकते हो। सेकंड इज गवर्नमेंट सेक्टर, लाइक आफ्टर यू ग्रेजुएट इसरो में जा सकते हो, गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हो। वहाँ के लिए मतलब हाँ, आपको अलग से एग्जाम देनी होती है, अलग से प्रिपरेशन होता है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? जैसे अपना कॉर्पोरेट का वर्ल्ड होता है वैसे नहीं होता वहाँ पे। you'll work on like a very small problem of a very big initiative, right? तो गवर्नमेंट हाँ। में it has its own challenges, but it's a very prestigious and good job. Like अगर तुम इसरो में जा रहे हो, ISRO is at the forefront of space science technology, right? Like US से भी I would say they are more efficient, cost efficient, and they work very well. बट वही इंडिया में फिर थोड़ा वो गवर्नमेंट का वही है कि हायरार्की वगैरह होता है, स्टेजेस बहुत लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, तो उस सब में तुम फंस जाते हो। तो मेरा मतलब मैं मेरी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जब मैं एरोस्पेस चूज कर रहा था तो दीज वर द ऑप्शंस। एंड फिर थर्ड है प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर में देयर आर मेजर कंपनीज, बोइंग है, एयरबस है, हनीवेल है, GE है। बट ऑफ कोर्स इनमें भी मतलब जाना थोड़ा डिफिकल्टी है, बट दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। एंड आई थिंक प्राइवेट, विद इन द प्राइवेट अभी नया ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में स्टार्टअप्स काफी बढ़ रहे हैं एरोस्पेस में, लाइक eVTOL, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले स्टार्टअप्स, ड्रोन्स वाले स्टार्टअप, स्वार्म्स वाले, फिर ऐसे स्टार्टअप्स जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ दीज ड्रोन कंपनीज मेक ड्रोन्स फॉर डिफेंस और फॉर इसरो, और मेक सैटेलाइट्स और कंपोनेंट्स। तो आई वुड से ब्रॉडली ये कैटेगरीज है इंडिया में। एंड जब मैं कर रहा था तो मतलब मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में था, प्राइवेट सेक्टर में, एंड वो तब काफी एक्सपैंड कर रहा था, तो फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। बट मेरे लिए सही था, क्योंकि इट गिव मी, मतलब मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए था बिफोर डिसाइडिंग कि मैं आगे पढूं कि नहीं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट इट वाज गुड फॉर मी, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट में जाता तो फिर मैं मतलब वही रह जाता। तो तो ये बोइंग, जैसे बोइंग इंडिया में जैसे आपने अप्लाई किया था, तो उसका प्रोसेस क्या था? मतलब बोइंग मोस्टली मेरे ख्याल से IIT में डायरेक्टली रिक्रूट करने नहीं आता है शायद। करेक्ट, तो करेक्ट। उसका ऑफ कैंपस आपने अप्लाई किया था, और किया था तो कैसे हाँ, किया था? कभी कभी आई थिंक दे इंटर्नशिप्स के लिए दे कम टू IITs, बट हाँ, जॉब के लिए तो मैंने नहीं देखा था। वो छोटे कॉलेजेस में जाते हैं यूजुअली, क्योंकि उनको इंडिया में मतलब बोइंग का मेनली IT सेक्टर ज़्यादा है, लाइक IT प्रेजेंस ज़्यादा है, लाइक पूरा बैक ऑफिस डेवलपमेंट यहाँ पे है। तो वो यूजुअली डेवलपर्स हायर करना चाहते हैं जो सस्ते में काम कर ले ऐसा। तो थोड़े स्पेशलाइज रोल के लिए इट्स डिफिकल्ट गेटिंग देयर। तो मैंने मतलब ऑफ कैंपस ही किया था, वेबसाइट से ही अप्लाई किया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट जॉब मेरी नॉन कोर में लगी थी, तब मैं मतलब स्टार्टिंग 3-4 महीने में समझ गया था कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो मैंने तभी से प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशंस चालू कर दिए थे। तो मैंने अपना एक डेटाबेस रेडी कर लिया था, मतलब एक शीट रेडी कर ली थी कि ये कंपनीज में ये टारगेट करना है, एंड उनका मैं लिंक्डइन पे और वेबसाइट पे चेक करते रहता था। तो बोइंग का फिर वेबसाइट पे अप्लाई किया था मैंने, ओपनिंग था फ्रेशर्स के लिए, एंड फिर उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, फर्स्ट लेवल, और फिर एक सॉफ्टवेयर लाइक टेक्निकल राउंड हुआ था, एक टेक्निकल टेस्ट बेसिकली। वो टेस्ट हो गए थे, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ गया था, एंड फिर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, एक टेक्निकल टीम के साथ और एक मैनेजमेंट के साथ, एंड फिर फाइनल HR राउंड के बाद हायर कर लिया था। एंड फिर उसमें भी उन्होंने बेसिकली क्योंकि वो IT के पर्सपेक्टिव से ले रहे थे, तो उन्होंने फिर हायर करने के बाद भी 3 महीने का ट्रेनिंग दिया था विथ लाइक अ थर्ड पार्टी, जिन्होंने हमें सारी IT टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया था।
तो उसमें मतलब हम्म। सारे ही थे, आईआईटीज एनआईटीज, दूसरे कॉलेजेस से भी लोग थे, तो उसमें मतलब बैचेस बना के फिर उन्होंने ट्रेन किया था, एंड फिर यू आर लाइक फ्री टू डू व्हाट यू वांट वैसा। अच्छा, ये जनरली लोग जैसे एरोस्पेस में काफी इंटरेस्ट रहता है, जैसे मैंने काफी लोगों को बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं एरोस्पेस में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसको लेके आने वाला हूँ। तो राइट। उनका मेन यही था कि अभी जो जितने काफी सारे लोग हैं जो एरोस्पेस में अप्लाई करना चाहते हैं, बट मोस्टली वो अप्लाई इसीलिए नहीं करते बिकॉज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम है। और राइट। जैसे कि बताओ कि हाँ, गवर्नमेंट में कोई जाना नहीं चाहता बिकॉज उसमें सीनियरिटी लेवल होता है, सो यू कैन करेक्ट। नॉट डू मच इफ यू आर डायरेक्टली गोइंग इन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उतना इनोवेटिव पॉलिसीज सपोर्ट करता भी नहीं है, मतलब करता है बट उस लेवल पे नहीं करता। मतलब अगर एरोस्पेस कोई चुनता है तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि जैसे मान लो उसमें एरोडायनेमिक्स का होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्स का होता है, कुछ थोड़ा सिस्टम एंड कंट्रोल का होता है। तो राइट। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या मतलब फील्ड्स हैं जिसके थ्रू एरोस्पेस में कोई अप्लाई कर सकता है, और वो राइट। अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज्यादा है या फिर बाहर है, तो बाहर कौन से कंट्री में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं किसी को। राइट। राइट। यार मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इसमें थोड़ा मिस इन्फॉर्म्ड रहती है पब्लिक। लाइक जब हम एरोस्पेस सुनते हैं तो हम वो सोचते हैं कि हम स्पेसक्राफ्ट पे काम करेंगे सीधा, या हम सीधा हम्म। एयरक्राफ्ट पे काम करेंगे। सो आई थिंक हम्म। उसका जो लूरिंग फैक्टर है दैट इज दैट, कि तुम किसी उड़ने वाली चीज पे काम कर रहे हो। But हम्म। people do not realize that aerospace can mean so many things. Like as you said कि systems and controls हो गया, अभी latest में तो software ही है पूरा, everything is software. तो even if you are in aerospace, very likely कि तुम किसी छोटे से सॉफ्टवेयर पे काम करोगे। तो लोगों को Yeah. मतलब ये आई थिंक अवेयरनेस नहीं है कि एरोस्पेस डज नॉट मीन कि तुम सीधा प्लेन डिजाइन करोगे या तुम रॉकेट Yeah. डिजाइन करोगे। देयर आर सब कंपोनेंट्स एंड स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ इट जिसमें तुम जाओगे। हम्म। तो जैसे सिस्टम्स हम्म। एंड कंट्रोल्स हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गया, हम्म। प्रपल्शन हो गया, प्रपल्शन में भी मतलब इंजन डिजाइन हो गया, फिर हाँ। डायनामिक्स में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हो गया जिसमें मैं हूँ। हम्म। उसमें फिर उसमें भी एयरक्राफ्ट डिजाइन आ जाता है थोड़ा एरोडायनामिक्स में जब तुम जाते हो। उसमें टर्बुलेंस होता है एक, जो कि बहुत बड़ा रिसर्च फील्ड है। एंड हाँ। ऑब्वियसली अभी लेटेस्ट में एआई है, जिसमें हम्म। तुम इस हर चीज में हर स्टेज पे एआई डाल रहे हो। फिर हाँ। सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स इज अ बिग पार्ट। लाइक इंडिया में पर्टिकुलरली जो भी कंपनीज है, जीई हो गया, हनीवेल हो गया, प्राट एंड विटनी हो हम्म। गया, यूटीसी हो गया, तो ये सारे सिस्टम्स हम्म। एंड कंट्रोल्स सिस्टम्स बनाते हैं फॉर एयरक्राफ्ट। तो लाइक फ्लाइट हम्म। कंट्रोल्स हो गया, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम्स। तो उसमें फिर हाँ। वो पर्टिकुलरली जब हायरिंग करने जाता है जैसे ऐसे रोल्स में, तो दे डू नॉट सी कि तुम्हारे पास एरोस्पेस की डिग्री है क्या, दे चेक कि तुम्हारे पास वो स्किल्स है क्या। जैसे अगर सिस्टम्स हम्म। एंड कंट्रोल्स है तो वो प्रेफर करेंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, कोई इलेक्ट्रिकल वाला है, जिसे हम्म। सिस्टम का ज्यादा पता होगा, भले एयरक्राफ्ट का ना पता हो। तो आई हम्म। वुड से कि जब तुम बोलते हो कि मुझे एरोस्पेस परस्यू करना है, यू शुड नैरो इट हम्म। डाउन कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें किस सब फील्ड में है, एंड उसके लिए कौन हम्म। सी डिग्री करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एरोस्पेस हम्म। की डिग्री करनी पड़े। एंड आई बिल्कुल। थिंक इसका अवेयरनेस नहीं है लाइक बैचलर्स लेवल पे इंडिया में, क्योंकि जब बिल्कुल। हमने भी मतलब काउंसलिंग वगैरह की थी आईआईटी में जाने के लिए, तो एरोस्पेस ले लिया था बिकॉज इट्स लाइक कि भाई काम करने मिलेगा, विच इज हम्म। नॉट। अगर तब कोई होता गाइड करने वाला कि नहीं तुम्हें सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, उससे तुम सॉफ्टवेयर बना सकते हो एयरप्लेन के लिए, तो मे बी वी हम्म। कुड हैव टेकन डिफरेंट रोड। आई थिंक गिविंग दैट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट लेवल। हम्म। अच्छा, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जैसे अभी आपने बोला कि जैसे जीई है, हनीवेल है, तो ये जो कंपनीज हैं, ये जैसा कि आपने बोला कि वो एरोस्पेस स्पेसिफिक नहीं जाती हैं, वो स्पेसिफिकली रोल स्पेसिफिक जाती हैं कि मतलब उस रोल में क्या रिक्वायरमेंट है। तो करेक्ट। अगर मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए सीएस में किसी ने किया, या इलेक्ट्रिकल में किया है, या फिर मेटलर्जिकल में भी किया है, so is it राइट। possible that they can get placed in these aerospace companies under यस। specific roles if they want? या या डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं Yeah. वही बोल रहा था कि जैसे उन्हें, जैसे अभी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स बनाना है उनको, एयरक्राफ्ट फ्लाइट फ्लाइट सिस्टम बनाना है, तो दे विल हायर हाँ। समवन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर करेंगे। उनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे हाँ। ऑब्वियसली कि उन्होंने उस टाइप के कंट्रोल में काम किया है क्या, पीएडी में काम किया है क्या, आरएल में काम किया है, या ऐसी चीजों में। ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव कोर रोल्स लाइक जी में, या इवन बोइंग में। तुम अगर फ्लाइट पे काम कर रहे हो, लाइक एरोडायनामिक्स में काम कर रहे हो, तो दे विल सी कि तुम्हारे पास एरोस्पेस की डिग्री है विद दैट स्पेशलाइजेशन। बट ऑल दीज कंपनीज इट इज वेरी रोल स्पेसिफिक। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें सच में उसमें इंटरेस्ट है, तो जब तुम कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो, हैव दैट इन हम्म। माइंड कि ऐसे हम्म। कोर्सेज में लेने हैं जो वो सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट होते हैं। हाँ। और लाइक फैकल्टीज फैकल्टीज नो द बेस्ट, कि हम्म। अगर तुम उनको पूछो कि मुझे ये कंपनी में ऐसा काम करना है, तो दे विल सजेस्ट कि हाँ तुम सिस्टम्स का कंट्रोल का कोर्स कर लो, या इसमें माइनर कर लो, या मैथ्स में माइनर कर लो, सीएस में माइनर कर लो। तो देन यू कैन क्यूरेट योर कोर्स लाइक दैट। एंड आई थिंक आजकल मॉडर्न
सिलेबस में हाँ यू कैन क्यूरेट योर कोर्सेज, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट फील्ड। अच्छा, अगर एरोस्पेस स्पेसिफिक कोई परस्यू करना भी चाहता है तो इज इट बेटर टू डू लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया और देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन अब्रॉड, सो व्हिच हाँ वन विल बी बेटर? यार, मतलब स्टडीज के टर्म्स में आई वुड से अब्रॉड इज बेटर। ऑफ कोर्स एट अ बैचलर्स लेवल नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू गो अब्रॉड, राइट? तो बैचलर्स लेवल पे तुम इंडिया में कर सकते हो, इट्स अ गुड फाउंडेशन, क्योंकि बैचलर्स में वैसे भी तुम इंजीनियरिंग फाउंडेशन ही पढ़ते हो पहले 2 साल तो। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी डिसाइड की तुम्हें किस में जाना है। बट यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे पर्सनली काफी बेटर लगा। इट्स मच हाँ मोर क्यूरेटेड, मच मोर इमर्स्ड, लाइक हर एक हम्म, कोर्स was very curated to the students, limited batch size था, तो हर एक पे अच्छे अच्छे से ध्यान देते हैं यहाँ पे। फिर हाँ जो कोर्स प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, दे आर वेरी रेलिवेंट कि ये भी दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। एंड ऐसा नहीं होता, मतलब हम्म, बेसिकली ऐसे भेड़ चाल नहीं होता है इंडिया जैसा हाँ कि सब कर रहे हैं तो कर लो, वैसे टाइप्स। अगर तुम्हें बिल्कुल कोर्स अच्छा नहीं भी लग रहा है तो तुम प्रोफेसर से बात करके यू कैन चेंज हाउ यू आर ग्रेडेड एंड स्टफ लाइक दैट। हम्म, सो काफी फ्लेक्सिबल होता है एंड तुम अपना इंटरेस्ट परस्यू कर पाते हो। इन टर्म्स ऑफ हम्म, अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, यहाँ पे अगर समझो तुम बैचलर्स लेवल पे भी हो, तो हम्म, यहाँ पे कंपनीज लाइक डायरेक्ट जो एरोस्पेस कंपनीज है वो डायरेक्ट हाँ इंटर्नशिप ये सब के लिए हायर कर लेती है। तो हम्म, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी हियर। अब्रॉड। या सो अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो कोई एमएस करना चाहता है, जैसे बीटेक के बाद एमएस करना चाहता है इन एरोस्पेस ओनली, so financially how much feasible it is for a middle class person to get that education abroad in US, let's say, ग्रेट, तो ग्रेट। कितना feasibility रहता है तो? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट ऑफ कोर्स हम्म, देयर आर ऑप्शंस। पहला तो जो काफी लोग मैंने देखा है करते हुए कि दे अप्लाई फॉर मास्टर्स विद थीसिस। तो इस हम्म, ऑप्शन में क्या होता है कि तुम्हें प्रोफेसर थीसिस थीसिस करने बोलता है 2 साल का, एंड उसके लिए हम्म, ही फंड। तो हाँ प्रैक्टिकली तुम्हारा सब फ्री हो जाता है उस केस में, हम्म, क्योंकि तुम्हारा ट्यूशन फीस 0 रहता है और तुम्हें स्टाइपेंड में मिलता है पर मंथ। दैट्स लाइक द बेस्ट हम्म, ऑप्शन। इसी की वजह से हम्म, काफी लोग पहले पीएचडी अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, मास्टर्स ना हाँ करके, क्योंकि पीएचडी में तुम्हें हम्म, फंडिंग चाहिए रहती है प्रोफेसर से। बट इट्स हाँ ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम। बट समझो अगर हम्म, जैसे मैं आईआईटीज की बात करूँ, अगर तुम आईआईटी से हो, तुम्हारे पास एक दो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, रिकमेंडेशंस है हम्म, एक दो हम्म, प्रोफेसर्स के, तो यू कैन इजीली गेट इनटू अ पीएचडी। एंड फिर यहाँ पे हम्म, पीएचडी में आके यू कैन फिगर कि तुम्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं 2 साल बाद, या मास्टर्स लेके निकलना है, विच इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू। दूसरा होता है हम्म, नॉन थीसिस वाला। नॉन थीसिस वाला एरोस्पेस इज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड इन टर्म्स ऑफ फीस, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। बट जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, यूआईयूसी का ऐसा था कि $6,000 पर पर कोर्स, सिक्स टू सिक्स सिक्स हम्म, $6,500 पर कोर्स ऐसा था, एंड 8 कोर्सेज हम्म, करने थे। तो मेरे केस में मुझे फर्स्ट 2 सेमेस्टर पे करना पड़ा था आउट ऑफ पॉकेट, एंड फिर हम्म, लास्ट 2 सेमेस्टर में मुझे रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई थी, जिसमें बेसिकली हम्म, तुम प्रोफेसर के साथ थीसिस करते हो एंड तुम्हारा फ्री हो हम्म, जाता है एजुकेशन। हम्म, बट हाँ, मतलब आजकल तो लोन इजीली मिल जाता है जितना मैंने देखा है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऑफ कोर्स वो तुम्हारा हम्म, बैकग्राउंड देखते हैं, बट जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कोलैटरल हो, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे। अगर उन्हें लगा कि यू हैव अ गुड प्रोफाइल एंड यू विल इवेंचुअली गेट अ जॉब इन द यूएस, तो तुम्हें इजीली हम्म, नॉन कोलैटरल रोल भी मिल जाता है, एंड इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो डिसेंट, आई वुड से लाइक 9 to 12 13% के बीच में है। तो मैंने हम्म, वही किया था, मैंने एक लोन सैंक्शन कर लिया था कि जब भी मुझे हम्म, ज़रूरत पड़े मैं वो यूज़ कर लूँगा। हम्म, एंड अदर देन दैट आई वाज आल्सो लाइक वर्किंग पार्ट टाइम यहाँ पे, लाइक स्टडीज़ के हाँ साथ मेरा एक पार्ट टाइम हाँ इंटर्नशिप कर रहा था मैं कॉलेज में, जिसके थ्रू हम्म, मेरा मतलब रहना खाना वो सब निकल जाता था। तो हम्म, आई वुड से गेटिंग द फर्स्ट लाइक फ्रॉम एन इंडियन मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव, अगर हम्म, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है तो हम्म, रीच आउट टू लोन लेंडर्स एंड सी कि तुम्हें क्या हम्म, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितना लोन मिल सकता है, और तुम यूनिवर्सिटी जो टारगेट कर रहे हो उससे मैच कर रहा है क्या। अब जो डेफिसिट हम्म, है उसमें, वो डेफिसिट तुम एक तो पार्ट टाइम वर्क करके बना सकते हो, या तो फिर हम्म, मतलब तुम यू हैव टू रिलाई ऑन योर फैमिली एंड स्टफ। बट आई वुड से लोन इजीली मिल जाता है जितना मैंने देखा है आज तक। एंड यहाँ पे आने के बाद तो तुम मतलब हम्म, सीख ही जाते हो सब, लाइक एवरीवन डज अ पार्ट टाइम जॉब, एंड सब हाँ प्रोफेसर से फंडिंग का ट्राई करते ही है कुछ ना कुछ रिसर्च लेके। सो इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग दैट लोन सैंक्शन अप्रूवल, जिसके बेसिस पे तुम्हें अपना वीजा मिल जाए एंड देन यू कैन कम हियर। फिर यहाँ पे आके स्ट्रगल तो है ही, मतलब वो हर चीज में है हम्म। स्ट्रगल, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, वहां पर जैसे प्लेसमेंट का अगर हम बात करें, वहां पर जैसे एमएस के बाद तो प्लेसमेंट का सीन कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा उस पर लाइट हाँ डालो थोड़ा सा। हाँ, वो काफी अलग है, एटलीस्ट फ्रॉम लाइक द कॉलेजेस दैट वी कम फ्रॉम। इंडिया में हम्म, कंपनीज खुद आती है कैंपस पे, राइट?
कि हाँ वो आती है विद द गोल ऑफ लाइक हायरिंग 10 पीपल और व्हाटएवर, लाइक हर एक कंपनी आएगी बोलेगी 5 लोग लेंगे 10 लोग लेंगे, एंड वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहता है। वो आएंगे, हाँ टेस्ट कराएंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो सब। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हम्म, होता। यहाँ पे एवरीथिंग इज, इट्स लाइक अ फ्री मार्केट, लाइक यूएस इज आई वुड से द फ्रीएस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो यहाँ पे तुम्हें खुद से ही करना पड़ता है। सो यू हैव टू लाइक स्टार्ट मेकिंग योर लिंक्डइन, यू हैव टू स्टार्ट नेटवर्किंग, रीचिंग आउट टू पीपल। करियर फेयर्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कंपनीज आती है एंड शोकेस करती है, दे हैव देयर ओपन रोल्स, बट वो उनका ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं होता है कि सबके लिए टेस्ट कराएंगे एंड फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे। तुम्हें खुद से जाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, मेक योर पिच, टॉक टू देम, कौन से रोल से क्या है, एंड नेटवर्किंग करनी पड़ती है। आई थिंक नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट फैक्टर इन द यूएस। कि ठीक है तुम्हें टेक्निकल आता है, बट तुम कैसे नेटवर्क कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो पहले से, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इट्स हेल्पफुल टू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे जाना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली लाइक इन स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक एरोस्पेस। तो उसमें जैसे मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जिन्होंने भी इंडिया में काम किया था, दे आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रोल्स यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं एज अ रिक्रूटर हूँ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली प्रेफरेंस दूंगा जिसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है फील्ड में। तो एंड वो वीज़ा के पर्सपेक्टिव से भी इजी हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू अप्लाई फॉर योर H1B एंड जस्टिफाई दैट आगे जाके। सो हाँ, मतलब दैट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। इंडिया में तुम ऐसे बैठ सकते हो कि हाँ कैंपस प्लेसमेंट आने वाला है, यहाँ पे वो नहीं आता। यहाँ पर एक्टिवली ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है वहाँ। हाँ, ऑफ कैंपस ही रहता है पूरा। कैंपस में मतलब हाँ, रिसोर्सेस होते हैं कि करियर सेल होता है जिनके थ्रू यू कैन डू योर रेज्यूमे रिव्यू कर सकते हो, तुम फिर मॉक इंटरव्यूज वगैरह कर सकते हो, वो सब प्रोसेसेस रहते हैं। बट जब जॉब लेने की बात है तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ता है। लिंक्डइन से रीच आउट करो, कैंपस पे मतलब इवेंट्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस जाओ, रिसर्च अगर तुम कर रहे हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेस। एंड काफी सारी कॉलेज फंडिंग भी होती है कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जैसे अगर तुम्हारा स्पेशल इंटरेस्ट है, दिल गिव यू कि हाँ ठीक है तुम जाते हो उनके कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एंड बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, वहां पर अगर एरोस्पेस स्पेसिफिक फील्ड की बात करें तो वहां पर एवरेज जो पैकेज आता है एरोस्पेस इंजीनियर्स का आफ्टर दे गेट जॉब आफ्टर एमएस, राइट, तो राइट। उसका रेंज क्या होता है? एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली रोल पे डिपेंड करेगा, बट एक रेंज का आइडिया दे सकते हो कितना जाएगा? हाँ, मतलब मैंने लाइक मुझे मल्टीपल ऑफर्स थे, तो मैं उसके बेसिस पे बता सकता हूँ। इट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द रीजन, बट आई वुड से $70,000 टू 120 पर $120,000 ईयर? रेंज में। हाँ, आ जाएगा एज अ फ्रेशर के लिए 100K इज आई वुड से ऑन द हायर साइड, लाइक वेरी फ्यू पीपल गेट दैट। अगर या तुम्हें वर्क 100 एक्सपीरियंस है, हाई सैलरी है। हाँ हाँ, अगर वर्क एक्स है तो ठीक है। बिना वर्क एक्स हम्म के आई वुड से 70 to 100 मैक्स। मतलब पर ईयर, राइट। राइट? हाँ, पर ईयर। तो ये एरोस्पेस फील्ड में आगे जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं? जैसे मान लीजिए किसी को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम्म। हाउ हाई कैन देयर सैलरी गेट इफ दे आर परस्यूइंग एरोस्पेस फील्ड फ्रॉम आउटसाइड? हाँ, इन द यूएस यू मीन। या यार मतलब ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छी होती है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑन योर रीजन, बट द फंडामेंटल डिफरेंस दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ग्रोथ क्या होता है। तो मतलब कोर फील्ड में मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है कि ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि तुम्हें हाँ कैसा अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, तुम्हें अपना एक्सपर्टीज बिल्ड करना होता है, एंड इट्स ओवर टाइम। लाइक या इसलिए लोग बोलते हैं कि लाइक वंस यू गेट इनटू अ कोर कंपनी यू शुड स्टे फॉर अ व्हाइल, क्योंकि हाँ अरे तुम लीडर्स वगैरह भी देखोगे, दे आर लाइक कि हाँ कोई 20 साल से कंपनी में, तब जाके वो एक्सपर्ट बना है, तब जाके उनके या रिलेशनशिप। अब पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड कि दे कंपेयर इट विद आईटी कंपनीज, राइट। आईटी में या तुम्हारा ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, क्योंकि हाँ तुम्हें पाइथन आता है, तुम यहाँ पे कर रहे हो 20 lakhs में, तुमने जंप किया, तुम्हें हम्म, सीधा 40 lakhs मिल गया। कोर में ये नहीं हाँ होता। कोर में काफी हम्म। तुम्हारा एक्सपीरियंस पे होता है। तो तुम जिस लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर आई वुड से 5 to 7% इंक्रीज होता है। दैट इज द तो रेंज दैट, इंडस्ट्रियल एवरेज ही है मेरे ख्याल से। हाँ एवरेज ही है वही। एंड यूएस में कम ही होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैसा फेयरनेस ऑफ पे है थोड़ा, कि तुम जिस हाँ रीजन में कर रहे हो उस रीजन में तुम्हें कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरी होती है, एंड यूजुअली इट हाँ इज इनफ टू सफाइस एवरीथिंग। उसके बाद ओवर एंड अबव रहता है कि तुम्हारा बोनस कैसा, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, मतलब अगर तुम एक रीजन में हो तो 5 to 7% वुड बी द स्टैंडर्ड ग्रोथ, आई वुड से। अगर तुम्हें फिर ज्यादा पैकेज चाहिए तो यू शुड कंसिडर मूविंग टू लाइक
an expensive place like New York or California, like West Coast, East Coast, जहाँ पे सैलरी ज्यादा मिलती है बट खर्चा भी ज्यादा ही होता है. तो मतलब या नेट इफेक्ट उतना नहीं होता हाँ हाँ करेक्ट, बट हाँ इट्स अच्छा। कंफर्टेबल, मतलब बहुत कम नहीं रहती सैलरी. अच्छा, वहां पर जैसे यूएस की बात करें तो यूएस में क्या क्या कंपनीज आती हैं, मतलब आर देयर मोर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज देयर, एंड कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मतलब जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज के मामले में? हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू डू नॉट गेट एरोस्पेस जॉब्स इजीली, या स्पेशली लाइक कोर एरोस्पेस, लाइक बोइंग में समझो तुम रिसर्च में जाना है तो वो हायर ही नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल। उसमें डेटा हाइटर डेटा रेस्ट्रिक्शंस होता है, जिसमें दे हैव अ रिक्वायरमेंट कि जो बंदा काम कर रहा है वो यूएस पर्सन होना चाहिए, उसके पास यूएस सिटीजनशिप होनी चाहिए एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए. सेम इज द केस विथ लाइक गवर्नमेंट कंपनीज लाइक नासा, यूएस डिफेंस, ये सब हो गया. तो हाँ मतलब काफी लोग यहाँ पे उस थिंकिंग से आते हैं कि हम एरोस्पेस कंपनी में काम करेंगे, बट फिर पता चलता है कि ओ शिट हम तो एलिजिबल ही नहीं है. तो मैं तो मतलब सबको यही बताता हूँ कि वर्क लाइक फाइंड इन रिलेटेड कंपनीज, लाइक जो सप्लायर्स हैं इनको, तो जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, यूटीसी हो गया, या बोइंग में भी मतलब एक कमर्शियल उनका विंग होता है, एक आईटी विंग होता है. तो टारगेट दीज प्लेसेस जहाँ पे तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी यूएस सिटीजनशिप की. फिर सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे एंसिस हो गया मेरा, सिमुलेशन कंपनीज होगी, फिर ड्रोन कंपनीज सारी जो ड्रोन्स के पार्ट्स बनाते हैं या टेस्टिंग करते हैं, स्टफ लाइक दैट. जैसे स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपनीज जो एनालिसिस करते हैं या मटेरियल डेवलप करते हैं. तो फिर मतलब तुम यहाँ पे आके एक स्पेशलाइज्ड फील्ड सिलेक्ट कर लो जिसमें प्राइवेट कंपनीज है, which are like not directly related to aerospace but have some products that can be like supplied to aerospace companies. तो अगर तुम जॉब पर्सपेक्टिव से आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. नहीं, सही है, ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है क्योंकि अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूएस अगर कोई एरोस्पेस कोर में अप्लाई करना चाहता है तो इज इट बेटर टू गो फॉर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और दुबई? सो विच वन इज बेटर Right. and more affordable, like in all terms, like studying as well Right. as applying for a job and getting job? So which region is Right. better suited among all Right. these locations? या मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर तुम प्योरली अगर कोर अपॉर्चुनिटीज के लिए बात करो तो आई थिंक यूरोप इज द बेस्ट, क्योंकि दे डू नॉट हैव सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस एज द यूएस. बट ऑफ कोर्स लाइक स्टडिंग देयर इज मच मोर डिफिकल्ट, वहाँ के कोर्सेज बहुत ज़्यादा रिगरस होते हैं एंड फिर वहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है. तो अगर तुम हाँ, जॉब के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे तुम. हाँ, वहाँ पे फेयरनेस ऑफ पे इज मच मोर than the US. US में भी US is still like more capitalistic than the Europe, right? So अगर तुम प्योरली पढ़ने के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो आई थिंक यूरोप जा सकते हो, इट्स अ गुड प्लेस. अगर तुम प्योरली जॉब के लिए आ रहे हो तो यूएस इज अ बेटर ऑप्शन. आई थिंक यू हैव बेटर अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे. अगर प्योरली पढ़ने के टर्म्स में जा रहे हो तो यूरोप इज अ बेटर ऑप्शन. बट वहाँ पे फिर वही है, जॉब्स है अच्छे, लिमिटेड है, अच्छे है, बट उसमें कहीं कहीं रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की. जैसे यूएस में तुम इंग्लिश में कर लोगे सब कुछ, बट यूरोप में काफी जगह में जैसे जर्मनी अगर गए तो जर्मन पढ़नी पड़ेगी, फ्रांस गए तो फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी, तो वैसी चीजें होती है. ये सारी चीजें पता नहीं होती काफी लोगों को, लाइक बेसिक पता होता है उनको, बट काफी जॉब्स ऐसी थी जो स्पेसिफिक रहेगी कि नहीं हमें फ्रेंच भी बोलने वाला ही बंदा चाहिए वैसा. अगर तुम्हें रिसर्च करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो दोनों जगह इक्वल इक्वल है. लाइक बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होता है यूरोप एंड यूएस के बीच में. काफी सारी कॉन्फ्रेंस में दोनों तरफ के लोग आते हैं, काफी सारे लोग जॉइंट बनाते हैं. काफी लोग ऐसे होते हैं जो यूरोप जाते हैं एंड फिर अपना थीसिस के लिए सिर्फ यूएस आते हैं. लाइक आई हैड अ फ्रेंड हु केम हियर फ्रॉम डेल्फ्ट ऐसे ही, एंड फिर वापस चले जाते हैं. तो क्रॉस कोलैबोरेशन काफी होता है अगर तुम रिसर्च में हो तो. बात तभी आती है कि अगर तुम्हें जॉब जॉब पर्सपेक्टिव से जाता है तभी आती है. एंड सेकंड होता है कि द टाइप ऑफ लाइफ यू विल लिव. लाइक थोड़ा कल्चर देख लो, यूएस का कल्चर इज वेरी डिफरेंट, यूरोप का कल्चर इज वेरी डिफरेंट. तो आई थिंक वो तुम्हारे पर्सनैलिटी से थोड़ा रिलेटेड रहता है कि तुम किस कल्चर में रहना पसंद करोगे इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट ऑफ योर करंट कंट्री. आई थिंक दीज आर कपल ऑफ फैक्टर्स. बट हाँ अगर पढ़ने जाना है तो यूरोप जाओ, जॉब के लिए जाना है तो यूएस आओ. ये और भी पूछना चाहता हूँ कि जो अभी एरोस्पेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आईटी का कितना रोल होता है, और बीटेक उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, या फिर कोई भी कॉलेज से करने के बाद उसके आगे का प्रोसेस इजी हो जाएगा? तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि हाउ हेल्पफुल आईटी इज फॉर द करियर इन एरोस्पेस. कुछ हेल्प मिलती है आईटी करने से, या फिर ऑल द कॉलेजेस लाइक आर सेम आफ्टर यू अप्लाई फॉर एमएस? स्पेसिफिकली मैंने देखा तो नहीं, ऐसे कुछ प्रोफेसर्स मैंने देखे जो खुद आईआईटी से है, जो सिर्फ आईआईटी के लोग लेते हैं, तो वो बेसिकली बायस हो गया.
बट हाँ अगर तुम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बायस देयर। वो तुम्हारा हम्म एसओपी देखते हैं, तुम्हारा एसे देखते हैं, तुम्हारे रिकमेंडेशंस देखते हैं, पास्ट रिसर्च हम्म देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं। तो जैसे मेरी बैच की बात करें यूआईयूसी में, हम्म तो मेरे बैच हम्म, में अराउंड 35 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 20 वर फ्रॉम इंडिया, हाँ एंड मैं अकेला उसमें आईआईटी से था। उसमें हम्म काफ़ी सारे एनआईटी से थे, काफ़ी सारे लोग एसआरएम और ऐसे कॉलेजेस से भी थे। तो आई वुडेंट से कि आईआईटी प्लेज अ ह्यूज रोल इन गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स अगर okay, मतलब बायस आई थिंक तब काम करता है थोड़ा जब तुम समझो पीएचडी कर रहे हो एंड तुम्हारा जो प्रोफेसर हाँ तुमने चूज किया है, ही हैज सम नॉलेज अबाउट आईआईटीज और हिज रिसर्च हम्म मैचेस योर्स, या फिर उसका ऐसा रेपुटेशन रहा है कि वो आईआईटीज वाली लोग लेता है। तो हम्म आई वुडेंट से कि इतना ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। तुम्हारा काम क्या है एंड तुम्हारा एसओपी क्या बोलता है उससे उससे ज्यादा रिलेटेड रहता है। But of course, people are aware about IITs here now, much more than before. अगर वो तुम्हारे प्रोफाइल हम्म में आईआईटी देखेंगे तो they will think of you a little highly than other people. So there is some bias, but हम्म अगर तुम उसके बाद इंटरव्यू में तुमने अच्छा नहीं किया तो it doesn't matter anyway. So it really depends on हम्म। your work only, I would say. अच्छा लेकिन जैसे मान लीजिए अगर एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ उसका कोर्स होता होगा या कुछ टेस्ट होता होगा शायद, या फिर वो सिंपली रिकमेंडेशन पे जाते हैं, ऐसा भी होता है या फिर कुछ टेस्ट स्पेसिफिकली देना पड़ता है? नहीं, टेस्ट वगैरह तो नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक टू कोर्स नहीं होते हैं। जनरलाइज टेस्ट हाँ होते हैं, जैसे ये हो गया क्या बोलते हैं, जीआरई होता है एंड आईएलटीएस जो हम्म इंग्लिश लैंग्वेज होता है। वो तो स्टैंडर्ड टेस्ट है सबके लिए, उसमें कुछ तुम्हारा एरोस्पेस या आईआईटी का कोई फैक्टर ही नहीं है। इट्स जस्ट अ हम्म रिक्वायरमेंट, जो कि आजकल कम हम्म हो रहा है, यूनिवर्सिटीज ने हटा दिया है क्योंकि इट्स जस्ट अनदर टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हम्म उसके अलावा तो कुछ नहीं, उसके अलावा पूरा रिकमेंडेशन एंड तुम्हारा एसओपी होता है। आई थिंक तुम्हारा एसओपी ही मेन है, एंड फिर तुम्हारे हम्म एसओपी से रिलेटेड वो यूनिवर्सिटी में कितना रिसर्च हो रहा है, या अभी किस प्रोफेसर के पास कितनी फंडिंग है फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। आई थिंक दैट डिक्टेट्स हम्म। एडमिशन रेट्स मोर दैन बीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज। अच्छा एसओपी क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताओगे क्या? एसओपी। अच्छा, एसओपी, हाँ, एसओपी इज बेसिकली योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो ऐसे बोलते हैं हम्म ना, जो तुम ऐसे लिखते हो हम्म, कि व्हाई डू यू अच्छा वांट टू स्टडी एट लेट्स से यूआईयूसी और स्टैनफोर्ड हम्म वर्ड। तो तुम्हें हम्म उनके रिक्वायरमेंट होते हैं कि 500 वर्ड, 1000 वर्ड में तुम्हें अपना हम्म एक्सपीरियंस लिखना है, एंड यू हैव टू कन्विंस देम व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर द यूनिवर्सिटी। सो इट्स हम्म highly qualitative, I would say. But हम्म SOP is the biggest part. Like कॉलेज में भी तूने देखा होगा जब एपिंग करते हैं लोग, तो एसओपी ही मेन होता है, और वो रिव्यूज कराते हैं 10 15 20 लोगों से। तो एसओपी हम्म। बहुत ऑन पॉइंट होना चाहिए एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ लेकिन आईटी में ऐसा है कि जब हमारा प्लेसमेंट होता है तो एसओपी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब है, इफ यू कैन गिव देन इट विल बी गिविंग यू एन एज, बट जैसे मेरे केस में मैंने एसओपी दिया ही नहीं था, मैंने सिर्फ रेज्यूमे दिया था, तो उसमें भी राइट, शॉर्टलिस्ट हो जाता है। मतलब इंडिया में उतना ज्यादा मतलब वेटेज नहीं दिया जाता कि मतलब करेक्ट, उसको करना करेक्ट, ही है। बट करेक्ट। अगर बाहर की बात करें फिर अप्लाइंग फॉर एमएस आउटसाइड, आई थिंक एसओपी बिकम्स वेरी नेसेसरी। या तो एसओपी इज द मोस्ट नेसेसरी। लाइक अगर तुम्हारा सीपीआई समझो कम भी है, तुम्हारा जीपीए, हम्म बट तुम्हारा हम्म एसओपी एक्सप्लेन्स इट इज लेस, एंड हम्म तुमने सप्लीमेंट किया है कि भले ही मेरा सीपीआई कम है बट मेरा ये काम रेलिवेंट है, हाँ, या मैं इसी में करना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो वो ले लेते हैं। जैसे मेरा सीपीआई हम्म बहुत हाई नहीं था, मेरा सीपीआई कितना बॉर्डर पे था, लाइक 7.9 टाइप्स था। तो इट वाजंट हाँ, इवन कंप्लीट 8, काफ़ी जगह कम 8 की रिक्वायरमेंट होती है। बट फिर मेरा जो हम्म। एक्सपीरियंस था बोइंग का, वो काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट किया वहाँ के जो रिसर्च पे काम किया था मैंने, एंड वहाँ के जो रिकमेंडेशंस मिले, तो आई थिंक दे गेव वेटेज मोर टू दैट। सो हाँ, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट एसओपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यूएस में So एप्लीकेशंस ultimately, के। मतलब the experience does count, right? Whenever you are working यस, in any company, and that experience will be taken या uh, या into either company which you're going to, करेक्ट। either हाँ, for मतलब US or even ऑब्जेक्टिवली, for. हाँ, ऑब्जेक्टिवली देख लो ना, लाइक अगर एक बंदा आ रहा है हम्म, जिसको जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है वर्सेस समवन हु हैज इवन अ लिटिल एक्सपीरियंस, दे विल ऑफ हाँ कोर्स प्रेफर दैट गाय। बिल्कुल। मतलब इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मास हायरिंग वाला सीन है इंडिया में। यहाँ पे मास हायरिंग हाँ वाला सीन है, इट्स वेरी टारगेटेड, वेरी स्पेसिफिक। सो वो वाला फैक्टर ही हट हम्म। जाता है। तो बेटर टू हैव अच्छा एक्सपीरियंस तो इन। या अच्छा तो मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने नॉन कोर कंपनी में काम किया था तो उसमें मतलब क्या, कौन सी कंपनी में काम किया था और उसमें क्या क्या सीखा, उसका कभी यूज आया आगे जब आपने एमएस के लिए अप्लाई किया उसके लिए? राइट, हम्म यार नॉन कोर तो मेरा ईवाई में काम था, कंसल्टिंग में। हम्म अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है क्योंकि क्यों मैं गया था, क्योंकि कॉलेज में आई थिंक मैं उतना पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था ऑनेस्टली। मैं एक्स्ट्रा हम्म करिकुलर बहुत ज़्यादा करता था, पढ़ाई भी करता था थोड़ी, बट
I think I was more exploring my interests than just focusing on पढ़ाई. तो कंसल्टिंग का बहुत हवा था आईआईटी में कि कंसल्टिंग कंसल्टिंग करना है. आई थिंक दैट्स द Yeah. रीजन आई सैट फॉर इट एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड फिर जब Hmm. गया जब ज्वाइन किया मैंने, तो इट वाजंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मतलब ऑफ कोर्स ये पता था कि Hmm. तुम क्लाइंट के साथ काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क होता है, बट द काइंड ऑफ वर्क Hmm. दैट यू डू इज लाइक, मेरे लिए इट वाजंट सैटिस्फैक्टरी आई वुड से. क्योंकि Hmm. तुम कुछ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तुम बस ट्राई कर रहे हो प्रूव करने का, वो बाय हुक और क्रुक, मतलब कहीं से भी Hmm. डेटा ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट टू प्रेजेंट दैट Hmm. नंबर, प्रेजेंट दैट ग्रोथ Yeah. स्टोरी टू देम. सो इट वाज अ लॉट ऑफ ब्लफ वर्क आई वुड से, जो कि मुझे Yeah. नहीं करना. काफी जार्गन यूज करना होता है, वर्ड सीखने होते हैं वहां पर, हाँ, है? बहुत ज्यादा जार्गन होता है एंड बहुत ज्यादा ब्लफ वर्क होता है. एंड मतलब मुझे ऐसा हाँ, लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्किल्स, लाइक हार्डकोर स्किल्स नहीं सीख रहा हूँ, कि मैं एक्सेल कर हाँ. रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट कर रहा हूँ, बट दैट्स प्रेटी मच इट. ऑफ कोर्स Hmm. द ट्रेंड वाज शिफ्टिंग, मतलब उसके बाद काफी सारा भी डेटा एनालिटिक्स और ये सब हो गया, बट उस Hmm. पॉइंट टाइम पे मुझे ऐसे थोड़ा अंडर यूटिलाइज फील होता है कि यार नहीं, मुझे पूरी लाइफ ये नहीं करना है. सेकेंडली ये था कि Hmm. मतलब वहाँ पे मैं अपने सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ डायरेक्टली काम करता था, एंड अक्रॉस द बोर्ड एवरीवन वाज डूइंग द सेम वर्क, कि मैं भी Hmm. एनालिसिस वही कर रहा हूँ, वो भी एनालिसिस वही कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट दे आर ऑन अ हायर डिग्री एंड दे डायरेक्टली टॉक टू द Hmm. क्लाइंट्स, whereas I'm doing the Hmm. menial work or whatever. तो मुझे वो उतना ल्यूक्रेटिव या ग्लैमरस नहीं लगा था, कि मुझे ऐसे नहीं लगा था कि ये मेरा टारगेट है लाइफ में या यहाँ पे मुझे पहुंचना है करके. एंड ऑफ कोर्स Hmm. लाइक वर्क एनवायरनमेंट वाज वेरी टॉक्सिक कंसल्टिंग में. इट्स अ लॉट ऑफ पीपल वर्क, राइट? Everyone's like blaming each other. I don't know if it's true everywhere, but at least EY में the culture wasn't good. Hmm. मैंने न्यूज़ Politics व्यूज़ ज्यादा देखी है होगी. EY की. Hmm. EY न्यूज़ में Hmm. आया ही था इस चीज़ के लिए. वेरी टॉक्सिक Hmm. कल्चर. तो हाँ, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स थे. एंड वर्किंग आवर्स वर आल्सो हॉरिबल. एक मैं 12-12 Hmm. 14-14 घंटे काम कर रहा हूँ. आई एम लाइक डूइंग सम अ लॉट ऑफ ब्लफ वर्क. सो मुझे Hmm. बिल्कुल वो सेटिस्फाइंग नहीं लगा था. एंड Hmm. उसके पहले भी मतलब मैं अपने जो फैकल्टी एडवाइजर थे उनसे बात कर ही रहा था, Hmm. कि आई वाज स्टिल कंफ्यूज बिटवीन कोर नॉन कोर. बट वही था कि Hmm. उन्होंने बोला आईआईटीज में डायरेक्ट कोर में जाना फ्रॉम अ बीटेक इज वेरी डिफिकल्ट. तो तुम्हें जो जॉब मिल Yeah. रही है मिल, एंड देन यू फिगर आउट. सो फिर 3-4 महीने के बाद ही, लाइक ईवाई में 3-4 महीने के बाद ही आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे वापस कोर में ही जाना है. तो फिर आई गॉट Yeah. बैक इन टच विद आवर फैकल्टी एडवाइजर एंड आवर एचओडी अभिजीत Hmm. चटर्जी के साथ भी बात Hmm. किया था. तो 1-2 बार जाके Hmm. मिला इंस्टीट्यूट में, सिंस मैं मुंबई में था. मिला, फिर तो उनसे Hmm. थोड़ा काउंसलिंग लिया. एंड दे वर लाइक कि इट्स गुड, लाइक जस्ट ट्राई टू learn whatever you can. So I think in terms Yeah. of teachings from EY, I would say कि I got to know what I don't want to do in life. तो आई थिंक वो सबसे बड़ी सीख थी. एंड ये भी काफी बड़ा Hmm. रियलाइजेशन होता है. और जिस चीज की Yeah. हवा होती है तुम उसके पीछे जाते हो, बट बाद में पता चलता है कि वो नहीं है. आई थिंक इट्स ओके टू लाइक मेक दैट मिस्टेक. बट आई Hmm. वुड से थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है उसके, क्योंकि तुम इतने क्लाइंट्स है और Hmm. पीपल के साथ काम करते हो. पीपल मैनेजमेंट, थोड़ी वो सॉफ्ट स्किल्स, डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें सीखने को मिली मेरे को वहाँ से. इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन टाइट शेड्यूल्स. तो ये सारी चीजें अभी भी हेल्प करती है. एंड आई थिंक द बिगेस्ट वन फॉर मी वाज कम्युनिकेशन. क्योंकि तुम कंसल्टिंग में इतना सॉफ्ट स्किल डेवलप करते हो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एंड स्किल, लाइक तुम्हारा बेसिकली ईक्यू जो बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट, वो थोड़ा Yeah. बढ़ जाता है. आई थिंक वो सारी चीजें मुझे अभी भी हेल्प करती है. लाइक मास्टर्स में भी जब मैं प्रोफेसर से डील करा या दूसरे नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स थे उनसे डील करा, तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी हेल्प होती है. एंड इट कंटिन्यूज इन करंट जॉब एज वेल. अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आज की जनरेशन काफी सारी सिर्फ पैकेज के पीछे जाती है. तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी लास्ट कंपनी में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो उसमें आपको राइट. कितना पैकेज मिल रहा था वो थोड़ा सा बताओ, ताकि ये एक राइट. आइडिया जाए कि भाई पैकेज इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू सी अदर थिंग्स आल्सो, कंपनी करेक्ट. कल्चर और दैट वर्क्स फॉर यू और नॉट, वो भी आपको देखना या पड़ता है. या यार, मतलब आई वुड से दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग कि सबको क्या मैटर करता है. तो रेंज बता दो, एग्जैक्ट मत हाँ बताओ. हाँ हाँ, फॉर श्योर. नहीं, मैं पूरा मतलब बता दूंगा. तो ईवाई में हम्म. जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा स्टार्टिंग पैकेज वाज 8 लाख रुपीज, विच इज नॉट हाँ. ह्यूज फॉर एनी हाँ. कंसल्टिंग. द ग्रोथ वाज हम्म. गुड. जो हम्म. मेरे बाद एक सीनियर लाइक कंसल्टेंट बने, एसोसिएट से कंसल्टेंट बने, ऑलमोस्ट 50% हाँ. 60% इंक्रीज हो गया उनका. एंड द ईयर हाँ. ऑन ईयर ग्रोथ वाज वेरी गुड. लाइक कंसल्टिंग में अगर तुम हो, तुम Hmm. यू कैन इजीली रीच अ 25+ लाख पैकेज विद इन लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स. हम्म. आई थिंक पैसा अगर तुम्हें बनाना है तो हाँ, मतलब इट्स अ गुड प्लेस टू बी. बट फ्रॉम माय हम्म. पर्सपेक्टिव मेरे को ये पता था कि सिंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड आई हैड अ गुड Hmm. फाउंडेशन, आई विल ऑलवेज Hmm. बी कंफर्टेबल इन लाइफ. लाइक मैं कभी इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करूंगा कि मेरे मतलब Hmm. खाने के लाले पड़े, ऐसा रहने के लाले पड़े. वो कभी नहीं Okay. होने वाला.
सो आई फेल्ट कि हम्म देखो पैसा तो पूरी लाइफ कमाना ही है, एंड सिंस आई हैव अ गुड बैकग्राउंड एंड बेस, आई विल मेक हम्म डिसेंट इनफ जिससे मैं कंफर्टेबल रहूंगा। बट ये जो टाइम है कि अगर मुझे कोर चूज करना है तो मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि समझो 1-2 साल का गैप भी आ गया तो देन आई विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ टच एंड इट विल बी वेरी yeah, डिफिकल्ट। सो आई थिंक वो फैक्टर, और ये सेम चीज मेरे को अपने प्रोफेसर ने भी बोली थी, अभिजीत ने, कि इफ यू वांट टू ट्राई कोर, ट्राई इट नाउ, इवन इफ इट डजंट हम्म वर्क यू कैन लीव एंड गो बैक टू नॉन कोर एट एनी टाइम। लाइक वो तो हमेशा तुम्हारा हम्म, ऑप्शन है। अगर तुम्हें हाँ पैसा ही करना है, तो तुम इजीली मतलब नॉन कोर में जाके यू कैन क्लाइंब अप द लैडर, कॉर्पोरेट लैडर, हम्म एंड गेट इनफ मनी। उन्होंने ये बताया था कि तुम आईआईटी से पढ़े हो, तुम्हें पैसे की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा हम्म, कॉग्निजेंट रहो, but बहुत ज्यादा तुम मतलब डीप वाटर्स में नहीं रहोगे। तो आई थिंक वो मेरे लिए फैक्टर था कि हाँ मतलब अगर मुझे हाँ, एरोस्पेस ट्राई तो अभी करूंगा मैं, एंड हम्म ओवर टाइम तुम्हारा पैसा बढ़ने ही वाला है, राइट? तो हम्म इट्स अबाउट आई वुड से क्विक मनी एंड व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम दैट यू हैव, कि तुम पैसा ज्यादा वैल्यू कर रहे हो या तुम्हारा काम हम्म, ज्यादा वैल्यू कर रहे हो। आई थिंक ओवर टाइम बिल्कुल एवरीवन वुड से कि यार हमें जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल, चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ा अर्ली ऑन रियलाइज कर ली थी, आई वुड से, एंड आई जस्ट स्टक टू इट। हम्म कंफ्यूजन तो हम्म बहुत था उस टाइम पे भी कि यार मतलब पैसा नहीं हम्म मिलेगा, व्हाटएवर, बट हम्म, ओवर टाइम आई वुड से पैसा बढ़ा ही है, एंड इट हैज क्या- बीन इनफ टू लिव कंफर्टेबली। नहीं एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्रेज प्लेसमेंट को और सैलरी को लेके ज्यादा चलता है, और यहाँ पर आईटी के हाँ जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा वो क्या कहते हैं ना पॉपुलराइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 करोड़ का पैकेज लग गया ये, तो इसका हाँ, क्रेज हमेशा होता है, तो इसलिए मैंने ये करेक्ट, क्वेश्चन पूछा था। अच्छा नहीं नहीं, नेक्स्ट दैट्स क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आईआईटी में जाने से एक चीज तो पता चल जाती है कि भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग कुछ तो कर लेंगे, तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। करेक्ट, बट जैसे कोई नॉर्मल कॉलेज से है तो वो उतना ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता, तो मतलब जिसमें भी प्लेसमेंट हो गया है तो जनरली लोग उसी में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट, एक डिफरेंस देखने को मिलता है जनरल रियलिटी में, या फिर ये ऐसा राइट, ही सभी कॉलेज वाले ऐसा ज्यादा रिस्क लेते हैं कि या वहां पर जैसे आप एमएस में कर रहे हो, एमएस आपने किया है राइट, अभी, तो राइट। वहां पर जॉब छोड़ के जो लोग आते हैं हम्म। उसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होता है इंडिया से जो आ रहे हैं? आइदर लाइक आईआईटी से होते हैं, जनरल कॉलेज से ही भी होते हैं, ये मैं नहीं मतलब हाँ, आई थिंक हर कॉलेज से होता है। आई वुडंट से कि स्पेसिफिकली आईआईटी से होता है। हम्म इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीवन, बट हाँ मतलब ये जो हाँ, कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है वो मैटर करता है। अगर तुम वैसे हम्म वैसी चीज में जा रहे हो, लाइक लेट्स से यू आर गोइंग टू डू एन एमबीए, तो उसमें हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा आईआईटी वाला जो कॉन्फिडेंस है वो हेल्प करेगा। हम्म तो हम्म इसमें जो हम चीज कर सकते हैं दैट इज डायरेक्ट द हम्म जनरल मासेस, लाइक ठीक है आईआईटी वालों को अलग रखते हैं, बट जो जनरल कॉलेज हम्म, वाले स्टूडेंट्स हैं, जस्ट लेट देम नो कि तुम्हारे ऑप्शंस क्या है, कि दिस इज नॉट हाँ, द एंड। अगर तुम्हें ज्यादा हम्म, एस्पिरेशंस है तो दीज आर योर ऑप्शंस, एंड हाउ कैन वी गाइड हम्म, देम, मे बी लाइक डू देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और व्हाटएवर। बट हाँ, बट आई थिंक एक बार उनको एक विन मिल गया ना लाइफ में इनिशियली, वो कुछ भी हो, हम्म, ठीक, तुम्हें जॉब मिल गई, अब उस बेसिस पे तुमने दूसरी जॉब ले ली लेट्स से खुद से, हाँ, so that gives them a confidence boost. So this help, हम्म, just like helping them realize कि ये चीज भी एक विन है, हम्म, सिर्फ आईआईटी में जाना हाँ, विन नहीं। आई थिंक बिल्कुल, that would really help. एंड यहाँ पे मैंने वही ऑब्जर्व किया, लाइक ऑफ कोर्स एंग्जाइटी तो सभी को रहती है, बट यहाँ पे इट्स मोर लेवल्ड, आई वुड से। जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम हम्म, आईआईटी डजंट मीन यू हैव अ बूस्ट। बिल्कुल, थोड़ा फर्क पड़ेगा हम्म, तुम्हारे वही कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में। बट जैसे मेरे साथ कुछ एनआईटीज के लोग थे या नॉर्मल कॉलेज के भी लोग थे, उनको स्टार्टिंग में हाँ, ही रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई थी, प्रोफेसर के साथ फंडिंग मिल गई थी, हम्म, दैट गेव देम अ वेरी बिग बूस्ट। या किसी को हम्म, इंटर्नशिप मिल गई थी स्टार्टिंग में, या बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। बस ये छोटी छोटी चीजें हम्म, रियली हेल्प बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक अगर हमें ये सॉल्व करना है या इन जनरल हेल्प करना है, तो जस्ट मेकिंग देम रियलाइज कि आईआईटी जो हवा है वो हवा ही है। तुम्हें बिल्कुल। जो कर रहे हो, अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो दैट इज अ गुड विन फॉर यू। नहीं लेकिन एक्चुअली हवा इंडिया में थोड़ी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन बाहर अगर जाते हैं तो मतलब उतनी ज्यादा नहीं है। नहीं उतनी तो ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं पीपल आर अवेयर बट एडवाइस उतना नहीं। Yeah. एक एडवाइस बोलना चाहता हूँ कि मतलब अगर कोई एरोस्पेस को परस्यू करना चाहता है एंड दे आर जस्ट इन से 9th और 10th ग्रेड, सो व्हाट आर द पाथ्स विच दे शुड टेक, और डिसीजन ऐसे क्या लें ताकि वो भी परस्यू कर सकें इस करियर को? क्योंकि काफी लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू डू दैट, तो मैंने राइट, तो यही बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता, जो एक्चुअल में है उनसे पूछते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो क्या राइट। एडवाइस देना चाहोगे इन स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए?
या मतलब उस लेवल पे तो आई थिंक फिजिक्स मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ लो सबसे हाँ। बड़ी एडवाइस वही है, क्योंकि हम्म, if you're in aerospace you will use physics maths extensively all the time, तो हाँ, अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखो। मतलब सेकंड ये भी है कि उस टाइम पे तुम्हें पता भी कितना है कि तुम्हें एरोस्पेस ही करना है, मतलब इट्स एन एस्पिरेशन, आई कैन अंडरस्टैंड। या, तुम्हें बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है कि तुम्हें क्यों एरोस्पेस करना है, so I think हाँ, having your foundation strong is like it should be the case either way, अगर तुम्हें जाना है नहीं भी जाना है कि that will help। हम्म, एंड फिर उनका करियर काउंसलिंग करना चाहिए कि उनका पर्सनालिटी टाइप कैसा है। आई थिंक कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी होते हैं विच आर साइंटिफिक, आई डोंट नो कि वो कितना हेल्प करते हैं कितना रियल होते हैं आगे जाके, बट जस्ट मैपिंग देयर हम्म, पर्सनालिटी टाइप टू द काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट एग्जिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे एरोस्पेस हम्म, में भी अगर तुम देखोगे कि सॉफ्टवेयर है, रिसर्च हम्म, है, नॉन रिसर्चर हम्म, है, मैनेजर है, ऐसे तो वो काफी पर्सनैलिटी टाइप पे भी डिपेंड करता है। तो हम्म, फॉर समवन लाइक दैट आई थिंक हाँ, हैविंग योर फाउंडेशन स्ट्रांग एंड डूइंग अ हम्म, करियर गाइडेंस फ्रॉम समवन हु रियली नोज द knows the trade, I think those two हम्म। the biggest tools I would say। दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस, बट जैसे फॉर एग्जांपल 10th के बाद इंसान को डिसीजन लेना ही पड़ता है, इंडिया की अगर बात हम्म, करें तो उसमें जैसे ऑप्शन क्या रहता है, तो या तो जेई का प्रिपरेशन करता है या फिर नीट का प्रिपरेशन करता है। बट राइट, मान लीजिए उसने डिसाइड कर रखा है इफ कि भाई उसको फ्यूचर में एरोस्पेस करना है, then in हम्म, that case what other options that person has apart from IIT? IIT is one option, yes. Once they can do IIT, yeah, they can either go for yeah, like aerospace departments are there in different IITs. If they right, can go in India, if they want to stay, like they can go for say ISRO or something. They have different right, their own set of exams. That's a different story, but this is one path they get. yeah, बट yeah, अगर मैं बोलूँ कि इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं आफ्टर 11th एंड 12th इन इंडिया, इफ दे वांट टू स्पेसिफिकली yeah, परस्यू एरोस्पेस। I don't think so, I mean engineering degree is like the minimum requirement अगर एरोस्पेस में जाना है तो। अगर तुम्हें हम्म, पक्का पता है कि एरोस्पेस ही करना है तो इंजीनियरिंग डिग्री तो करनी ही पड़ेगी थ्रू हाँ, सम वे, लाइक मैकेनिकल से एरोस्पेस करो या एरोस्पेस करो या मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट, इंजीनियरिंग तो करनी ही पड़ेगी। बीटेक इज अ रिक्वायरमेंट, राइट? बीटेक इज अ रिक्वायरमेंट, हाँ मतलब अ बैचलर्स डिग्री इज अ रिक्वायरमेंट एवरीवेयर, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट इफ नॉट अ मास्टर्स आल्सो। तो हम्म, अगर पता है एरोस्पेस में रहना है तो हाँ, बैचलर्स मास्टर्स तो आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी का फिर तुम देख सकते हो आगे जाके क्या है, बट ऑन दैट लेवल हाँ, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर एज मच एज यू कैन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। एज यू सेड कि दूसरे कॉलेजेस के खुद के एग्जाम्स होते हैं, आईआईएसटी हो गया, आईआईईएसटी हो गया, तो हाँ हम्म, वो सारे एग्जाम्स दे दो जहाँ पे हम्म, भी तुम्हें मिल रहा है ऑप्शन। जस्ट गेटिंग इनटू अ गुड हम्म। गुड बीटेक कॉलेज शुड बी देयर गोल एट दैट टाइम। तो मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि भाई अगर 9th 10th 11th 12th स्टेज की अगर बात करें क्लासेस की, फिजिक्स एंड मैथ्स का ज़्यादा यूज होता है अगर एरोस्पेस स्पेसिफिकली परस्यू करना चाहता है। और करेक्ट, एंट्रेंस एग्जाम देने से मेरे ख्याल से एटलीस्ट फिजिक्स मैथ्स वो अच्छे लेवल पे पढ़ेगा, बिकॉज सिर्फ करेक्ट, बोर्ड्स में आई डोंट थिंक द लेवल ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स विच दे टीच इज क्वाइट अप टू द मार्क। करेक्ट, या बट अगर हाँ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दे रहा है, आई थिंक देन उसका लेवल उस लेवल पे रहता है, वी आर एबल टू लाइक थिंक इन दोज, मतलब उस लेवल पे हम सोच सकते हैं। देन अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां तो फिजिक्स कुछ ज्यादा ही मतलब लेवल पे वो सिखाया जाता है। एडवांस हो फॉर जाता है, एग्जाम्पल करेक्ट, हाँ एरोस्पेस में लाइक मुझे अभी थोड़ा बहुत याद है, फॉर एग्जाम्पल वो शॉक वेव्स का थोड़ा बहुत याद है मेरे को, शॉक वेव्स पढ़ाया जा हाँ, रहा था। थोड़ा डायनामिक्स है, एक कोर्स वो भी था स्पेस वाला, मतलब स्पेस क्राफ्ट का, लाइक नेवियर स्ट्रोक फ्यूजन, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, लैमिनार फ्लो, ये सब चीजें याद है। तो करेक्ट, वहां पर जो करेक्ट, मैथ्स सिखाते हैं, आई थिंक द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथ्स दैट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। या तो या उसको समझने के लिए हाँ बेसिक्स हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेसिक्स दैट थिंग। बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए, तो मतलब ये इसमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए। करेक्ट, अच्छा, उसके अलावा अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन इंडिया, इफ समवन वांट्स टू स्टे इन इंडिया ओनली, और या इंडिया में प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज कम है, जैसा कि आपने बताया इंडिया में जो प्राइवेट एरोस्पेस की कंपनीज हैं वो भी आईटी के लिए ज्यादा लेती हैं। दे डोंट राइट, गो फॉर लाइक एरोस्पेस या R&D, एरोडायनेमिक्स के लिए कोई जाना चाहता है, स्पेसिफिक कोर में जाना चाहता है, मटेरियल डिजाइनिंग में, तो उसमें राइट, ये प्रेफर नहीं करेंगी इंडियन रीजन में। तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट इज देयर। राइट, या गवर्नमेंट में जैसे इसरो हो गया, और आई थिंक एचएएल हो गया, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो राइट। इनको इनमें अगर कोई जाना चाहता है तो व्हाट इज द पाथवे फॉर दैट? तो उनमें भी एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम ही होती है, लाइक मैंने इसरो की आई थिंक दी थी मैंने एग्जाम,
तो वो सेम हम्म होता है कि 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है उनकी, एंड बेस्ड ऑन दैट एंट्रेंस हम्म एग्जाम तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. सो आई हम्म वुड से लाइक एट दैट स्टेज सारी एग्जाम्स दे दो, अगर तुम्हें जाना ही है तो माइट एज वेल जस्ट ये अटेम्प्ट इट. 12th की बात ही होता है एग्जाम इसरो का भी। 12th के बाद भी होता है, और उसके मतलब तुम इंजीनियरिंग के बाद कुछ साल तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो. स्पेसिफिकली इसरो का मेरे को पता है, एचएल का मुझे आइडिया नहीं है, हम्म बट इसरो का हम्म हाँ तुम मतलब कुछ साल तक वो अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम. तो जस्ट फाइंड दैट आउट कि हम्म कब वो एग्जाम है and क्या क्या उसमें पूछते हैं. बट हाँ मतलब जैसे अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है वो इंजीनियरिंग की बेसिस पे हम्म होती है, तो उसका हम्म प्रिपरेशन करना पड़ता है. इट्स लाइक गेट बेसिकली, इसे गेट होता है. हम्म। अच्छा, तो इसरो का सिलेबस जैसे 12th के बाद अगर कोई देता है तो इसरो का सिलेबस वही होता है जो जेई का है, या फिर कुछ अलग उसमें और करना होता है? यार 12th के बाद वाला मेरे को आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, बट इंजीनियरिंग के बाद वाला मुझे पता है क्योंकि उसमें पूरा इंजीनियरिंग कुछ वो वाला मैंने दिया था. अच्छा अच्छा, हाँ एरोस्पेस का पूरा कुछ होता है। हाँ एरोस्पेस का पूछते हैं, सारे टॉपिक्स होते हैं. कुछ कुछ आई थिंक तुम्हें सिलेक्ट करना होता है कि तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है. एरोडायनामिक्स है, हाँ। कंट्रोल्स है, स्ट्रक्चर्स है, हम्म। बट सारे क्वेश्चन उसके बेसिस पे होता है जॉब के पर्सपेक्टिव से. अच्छा, मैंने सुना कि मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं हाँ इसरो हाँ, में। तो मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल. या तो उनको मतलब बेसिकली उनको सिस्टम कंट्रोल मतलब ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वो डिपेंड करता है, अगर हाँ। सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स सिलेक्ट किया तो उसके रिलेटेड पूछेंगे फिर. मतलब डजंट डिपेंड कि व्हाट डिग्री यू हैव. अगर तुम्हारा स्पेशलाइजेशन उसमें है तो हाँ उसमें तुम सिलेक्ट करो. बट हाँ मतलब एरोडायनामिक्स हम्म का भी होता है, मेरा सी एरोडायनामिक्स का ही था, तो उसके उससे रिलेटेड हम्म। ही आए क्वेश्चन सारे. प्रपल्शन वालों को प्रपल्शन के रिस्पेक्ट में, तो हाँ उसी पे अच्छा डिपेंड जैसे, करता अच्छा डीआरडीओ भी है इंडिया में जैसे, है. तो क्या डीआरडीओ भी ले सकता है आफ्टर बीटेक इन इंडिया? इज देयर अ हाँ वे हाँ टू अप्लाई इन? बिल्कुल. या उनका भी अच्छा एंट्रेंस उसमें भी एग्जाम तो- होता है सेम. अच्छा। उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है डीआरडीओ का. मतलब मैंने इतना डीआरडीओ का तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, बट एंट्रेंस एग्जाम हम्म। होता है बस. अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपका करंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है अभी सीएफडी, हम्म. तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि सीएफडी होता क्या है, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सभी के लिए जो परस्यू करना चाहता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। Sure, yeah. So CFD stands for Computational Fluid Dynamics. It is basically a way of solving the Navier-Stokes equation using computers. हम्म So हम्म CFD मतलब एकदम सरल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो फ्लूइड्स जो तुम्हारे जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उसका जो हाँ। फिजिक्स है उसका नेचर हम्म प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है. इट्स अ टूल टू हम्म स्टडी द नेचर ऑफ फ्लूइड्स बेसिकली. तो मेरे करंट हम्म। रोल में I use ANSYS Fluent, which is the solver for CFD. सॉफ्टवेयर। बट बेसिक्स अगर मैं बताऊँ CFD के, तो बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम अपना डोमेन लेते हो. लाइक एक एग्जांपल मैं पाइप का देता हूँ. अगर पाइप से फ्लो जा रहा है तो तुम अपना पाइप का एक 3D मॉडल बनाते हो या 2D मॉडल बनाते हो. तुम फिर उसको डिस्क्रिटाइज करते हो, जिसमें तुम मतलब उसको डिवाइड करते हो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन इन ईच ऑफ दीज स्मॉल एलिमेंट्स. और फिर उसका पूरा जो बल्क सॉल्यूशन होता है उसे तुम प्रेडिक्ट करते हो कि ये पॉइंट पे ये वेलोसिटी रहेगी, ये पॉइंट पे ये प्रेशर रहेगा. अब इनका ये बेसिक्स हो गया. इसमें काफी सारी चीजें होती है, फिर टर्बुलेंस होता है इसमें, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो तुम पढ़ते हो बेसिकली इन द थियोरी. इसका फिर एप्लीकेशन वाला साइड आता है कि तुम ये अप्लाई करते हो चीजों में. तो जैसे द मोस्ट कॉमन इज एयरक्राफ्ट डिजाइन, कि एयरप्लेन जब उड़ रहा है तो उस पे एयर कैसे इम्पिंज हो रही है, एयर कैसे बिहेव कर रही है, और उसके बेसिस पे तुम्हारा एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कैसा है. उसके बेसिस पे तुम अपना एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हो. या सेकंड एग्जांपल हो गया कार डिजाइन का, कि कार जब रोड पे जा रही है बहुत हाई स्पीड पे, तो उस पे एयर की वजह से क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एंड उसको तुम कैसे बेटर बनाओगे, कैसे एरोडायनामिकली एफिशिएंट बनाओगे, स्टफ लाइक दैट. तो मेरे करंट रोल में मैं बेसिकली ये सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ANSYS Fluent. So I learn like all the techniques that we have, जो भी specialized techniques है उसमें. और फिर मेरा रोल थोड़ा स्पेशलाइज्ड है क्योंकि मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता हूँ जो हमारा सॉफ्टवेयर बाय करते हैं. तो उनके काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स है. सो मेरा क्लाइंट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी. आई कांट गो इनटू मच डिटेल बिकॉज इट्स रेस्ट्रिक्टेड डेटा, बट हाँ इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी जो कि काफ़ी सारे मिक्सिंग, पंपिंग, पाइप फ्लोज, हीट ट्रांसफर, ऐसी सारी चीज़ें करते हैं. तो दे वांट टू लाइक सॉल्व देयर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स. जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इसमें समझो उनका कुछ नया फॉर्मुलेशन आ रहा है एंड दे डोंट नो हाउ इट्स फ्लो थ्रू द पाइप. तो दे विल टेक द हेल्प ऑफ आवर सॉफ्टवेयर एंड सिमुलेट दैट होल प्रोसेस, एंड उस प्रोसेस सिमुलेशन में मैं इनकी हेल्प करूंगा यूज करने में ये सॉफ्टवेयर.
एंड फिर विल सी हम्म, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड तुम अपना फिर डिजाइन बेटर करोगे। हाँ मतलब इट्स मोर अप्लाइड than theory, बट अगर तुम CFD की बात हम्म, करोगे तो इट्स वेरी एक्सटेंसिव फील्ड, पूरी तुम अपनी लाइफ हम्म, स्पेंड हुए पढ़ते हुए, एंड हम्म, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट वेरी एडवांस्ड एट दिस पॉइंट ऑल्सो। लाइक जो 50 साल पहले टेक्नोलॉजी थी अभी भी लोग वही यूज कर हम्म, रहे हैं, क्योंकि जो उसका इक्वेशन है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, दैट्स लाइक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ ऑल टाइम। देयर इज एक्चुअली $1 million प्राइज फॉर इट, जिन्होंने हम्म। भी उसका मैंने अगर क्लोज। एक मूवी में देखा था शायद, देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज गिफ्टेड, राइट? इन दैट मूवी दे एक्चुअली टेल कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इज अ अनसॉल्व्ड इक्वेशन, किसी कोई सॉल्व करेगा तो उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो तो भाई, तो ये दो चीजें, हाँ मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, एंड अभी विथ हम्म, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, AI, इसमें काफी ज्यादा स्कोप है कि तुम वो हम्म, टेक्निक्स को कैसे बेटर करोगे यूजिंग द डेटा दैट यू ऑलरेडी हैव, or using like हम्म, better learning methods and stuff like that. So it's a very very interesting, very vast field. इसलिए मतलब मेरे को इंटरेस्ट था उसमें, एंड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल भी था, आई वुड से, क्योंकि हम्म, जो तुम्हारा फ्लूइड का बिहेवियर है वो बेसिकली आता है हम्म, टर्बुलेंस से। लाइक मेरा रिसर्च भी टर्बुलेंस में था, और एंड टर्बुलेंस इज समथिंग दैट इज लाइक द मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड थिंग इन द यूनिवर्स, कि टर्बुलेंस क्यों होता है, उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम्म, इट्स chaotic and stuff like that. So it exists everywhere, and it affects like every part of life, I would say, and the products that we use. तो मेरा वो भी था थोड़ा कि हाँ मतलब इससे रिलेटेड अगर मैं रहूंगा, तो I'll be philosophically also very motivated about life. 11th में हमारे पास एक चैप्टर होता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें ये बहुत ही छोटे लेवल पे बताया जाता है कि टर्बुलेंस क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो Correct, क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। बट correct, आगे बढ़ते हैं, आफ्टर इंजीनियरिंग इसको काफी कॉम्प्लेक्स लेवल पे यूज किया जाता है, एंड correct, like it's the most difficult part to be even solved by supercomputers also, I think. Navier-Stokes correct, equation remains solved even by higher computers. correct. तो अच्छा, आपने जैसे एक चीज बोली थी कि AI is also used in this aerospace field now. Right, So how is it used and क्या एवेन्यूज हैं उसके यूज करने के लिए ये right. एरोस्पेस के अंदर? मतलब है तो वो हर जगह, I would say, in every aspect of the aircraft it can be used. बट मैं अगर CFD के टर्म्स में बताऊँ तो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लाइक द लेटेस्ट रिसर्च इज समथिंग कॉल्ड PINNs, which is physics induced neural networks. तो जब तुम एक AI हम्म, की बात करते हो तो AI is a data model, right? It's based on हम्म, it is trained on existing data, but हाँ, the AI model is physics agnostic. उसको फिजिक्स नहीं समझती हम्म, है, उसको नहीं पता हाँ, कि फोर्स इक्वल्स ma और whatever, it doesn't know any laws of physics. तो अभी जो रिसर्च चल रहा है वो उसमें है कि हाउ कैन वी मेक AI अंडरस्टैंड फिजिक्स, कि अगर उसने समझो 3 रिजल्ट निकाले एक चीज के, तो जो हम्म, मोस्ट फिजिकली रेलिवेंट रिजल्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई हम्म, करेगा। तो उसमें फिर हम्म, मल्टीपल टेक्निक्स है, मतलब दैट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इन टर्म्स ऑफ हाँ, CFD दैट इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट, आई वुड से। सेकेंडली, हम्म, अगर मेरी कंपनी की बात करें तो मेरी कंपनी में वी हैव अ न्यू टूल कॉल्ड सिम AI, विच इज बेसिकली अगर हम्म, तुम्हारे पास सिमुलेशन डेटा है, समझो एक ज्योमेट्री पे बहुत सालों का, हम्म, इफ यू हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सिमुलेशन, एंड तुम हम्म, वो रोज करते हो, समझो रोज या बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो, एवरी वीक यू डू अ सिमुलेशन ऑफ दैट, सो यू कैन यूज दैट हम्म, डेटा, द सिमुलेशन डेटा, एंड ट्रेन एन AI मॉडल, एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम्म, तुम्हें कुछ एनालिसिस करना है थोड़ा पैरामीटर्स ट्वीक करके, तुम्हें पूरा सिमुलेशन रन करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट यूज दैट AI मॉडल। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ अगर एरोस्पेस की बात करें तो द बिगेस्ट एप्लीकेशन, आई वुड से, इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। हम्म, जब एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है तो अगर कुछ गलत होता है, हाउ डू यू प्रेडिक्ट दैट बिफोर बिकॉज इट लैंड। एक्सीडेंट्स आर क्वाइट रैम्पेंट, लाइक अभी कुछ करेक्ट, कुछ महीनों पहले की बात है, लाइक देयर वर टू मेनी एक्सीडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन एयरक्राफ्ट, करेक्ट, सो आई थिंक मेनी वी कैन हेल्प क्रैशेस। प्रिडिक्ट देम। हम्म, या एग्जैक्टली। तो उसमें हम्म, हो गया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट की तुम्हारी सेफ्टी हम्म, कैसे तुम इम्प्रूव करोगे। इवन इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे राउट्स होते हैं तो राउट ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो इस हाँ, चीज़ों में भी यूज होता है। एंड फिर बेसिक बेसिक जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है उनको बेटर हम्म, करने के लिए AI यूज करते हैं, जो तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है एयरक्राफ्ट के अंदर, and also like from ground to the aircraft. So those are also technologies where that can be used. And third is, मतलब it's a very broad field, but manufacturing में भी बहुत AI यूज हो रहा है। एरोस्पेस के करियर के लिए आईआईटी ने या फिर किसी कॉलेज का कितना महत्व रहता है, बस वो पूछना चाहता हूँ मैं। यार देखो, इम्पोर्टेंट तो है मुझे लगता है, बिकॉज
तुम्हें वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो लोगों से मिलता है। सो आई थिंक कोई भी कॉलेज का जो मेन पॉइंट रहता है, इट्स कनेक्टिंग विद पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए आई थिंक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। सी इफ अगर कोई आईआईटी में नहीं है, कोई छोटे कॉलेज में, अगर वो पूरी जी जान लगा रहा है तो कर सकता है, राइट? ही कैन कनेक्ट टू पीपल, ही कैन रीच आउट टू पीपल, मेक दोज रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। तुम एक अच्छे कॉलेज में जब जाते हो, लाइक एन आईआईटी और एन एनआईटी, द थिंग इज वो तुम्हारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है, दैट यू हैव एक्सेस टू दीज पीपल। लाइक तुम्हारा अलुमनाई ग्रुप हो गया, तुम्हारे प्रोफेसर्स जो रहते हैं वो काफी पहुंचे हुए रहते हैं। लाइक हमारे प्रोफेसर्स थे हु हैड वर्कड ऑन द तेजस प्रोग्राम इन इंडिया, उन्होंने डीआरडीओ में काम किया है, यूएस में काम किया है, तो उनका सारा एक्सपीरियंस तुम्हारे डिस्पोजल पे होता है। बट उसके बावजूद मतलब अब हमने देखा होगा कॉलेज में बहुत कम लोग करते हो, राइट? बहुत कम लोग रीच आउट करते हैं या दे टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। सो आई थिंक आईआईटीज एंड एनआईटीज या अच्छे कॉलेजेस का उसमें फर्क पड़ता है कि यू हैव एक्सेस टू दिस, बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना अपॉर्चुनिटी को यूज करते हो। So to get that access, I think you can start thinking कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है ताकि मैं वो लोगों से मिल पाऊँ, अगर तुम लाइक इतने फोकस्ड हो तो। बट ऑन द फ्लिप साइड इतनी सारी अच्छी चीजें होती है आईआईटीज एंड एनआईटीज में कि तुम ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। जैसे हम में से ही, हमारे बैच में से कितने लोग स्टिक किए एरोस्पेस को? बहुत कम लोग स्टिक किए। सबने अलग चीजें एक्सप्लोर की, कोई नॉन कोर में गया, किसी ने एरोस्पेस से सीएस किया, किसी ने इलेक्ट्रिकल किया। तो तुम्हारे लिए बाकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है, क्योंकि व्हेन यू आर यंग यू आर फोकस्ड कि हाँ मुझे यही करना है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ज्यादा चीजें। बट व्हेन यू गो टू अ प्रीमियर कॉलेज, you get exposed to other things that might be more aligned to what you want to do or what your personality matches. So उस टर्म्स में भी अच्छा होता है IITs and NITs का environment. अच्छा, ये एरोस्पेस में एलुमनी नेटवर्क किस तरह का है बाहर इंडिया से? So मैं ऐसे लाइक मैं कॉलेज के लेवल पे बता पाऊंगा कि हम्म। IITs का alumni network स्पेसिफिक टू एरोस्पेस उतना स्ट्रांग नहीं है। बट अगर अच्छा। तुम टेक्नोलॉजी में देखो, लाइक इंजीनियरिंग का अगर देखो, तो है लाइक देयर आर चैप्टर्स यहाँ पे alumni नेटवर्क्स के। बे एरिया का एक चैप्टर है, न्यूयॉर्क का है, शिकागो का है, तो वहां पे तुम जा सकते हो। बट उसके अलावा यूआईयूसी का अच्छा है काफी। मतलब मैं जिस कॉलेज में गया था, उनका हाँ। एरोस्पेस फोरम होता है, एक alumni फोरम। उसमें हर हर मंथ देखी पोस्टिंग कि किसने क्या रिसर्च पब्लिश किया, एडवांसमेंट्स क्या हुए, ये वो, एंड दे हैव सेमिनार्स एंड ऑल। सो एलुमनाई नेटवर्क तो मतलब आई थिंक आजकल अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो तो सबका एक एस्टेब्लिश रहता है। बट वही है कि तुम्हें टाइम निकाल के उसमें जाना होता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो आई थिंक नेटवर्क तो अच्छा है इफ यू थिंक अबाउट आर फील्ड्स। अच्छा, ये जैसे आईआईटी में जाते हैं तो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जैसे मार्स रोवर प्रोग्राम था, यूएवी अंडर वाटर व्हीकल प्रोग्राम था, एक F1 वाला प्रोग्राम भी था। तो इन हम्म। प्रोग्राम्स में अगर कोई काम करता है इनको एज एन एडेड बोनस इन रिज्यूमे, अगर वो करता है तो राइट। उसको कितना बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर इन एरोस्पेस फील्ड? उसमें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आई वुड से, क्योंकि तुमने किसी टैंजिबल प्रोजेक्ट पे काम किया है, राइट? क्योंकि हम्म। हमारे एकेडमिक्स तो बहुत जनरल होते हैं, लाइक तुम फिजिक्स पढ़ते हो, हाँ। तुम प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। हम्म। बट इंडस्ट्री में अगर तुम्हें जाना है या रिसर्च करना है, तो यू विल मोस्टली वर्क ऑन सम एप्लीकेशन इन मोस्ट हाँ। केसेस, अनलेस तुम लाइक प्योर हम्म। साइंसेस में जा रहे हो या मैथ में जा रहे हो, फिजिक्स में जा रहे हो। बट इवन इन हम्म। दैट तुम्हें पता चलता है कि हाउ डज दिस फिजिक्स वर्क ऑन एप्लीकेशंस ऑन एक्चुअल प्रोडक्ट्स। तो हम्म। डेफिनेटली करना चाहिए आई थिंक। वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वो हम्म। तुम्हें टेक्निकल चीजें तो सिखाता ही है, बट उसके अलावा बाकी क्या चीजें, लाइक ठीक है अगर तुम्हें एरोडायनामिक्स आता है, बट फिर जब तुम हम्म। एक समझो फॉर एग्जांपल कार पे अप्लाई कर रहे हो एसई के थ्रू या हाँ। व्हाटएवर, तो तुम्हें पता चला कि एरोडायनामिक्स बाकी चीजों से कैसे रिलेटेड होता है, लाइक स्ट्रक्चर्स एंड एरोडायनामिक्स का क्या फंक्शन होता है। तुम हम्म। हो सकता है फ्लूइड्स के साथ स्ट्रक्चर इंटरेक्शन सीखोगे। फिर तुम कंट्रोल हम्म। सीखोगे कि ओके मेरा एरोडायनामिक्स ऐसा है, तो मैं कंट्रोल्स हम्म। कैसे कंट्रोल करूंगा अपने कंट्रोल सर्फेसेस ताकि मेरा एरोडायनामिक्स इंप्रूव हो। तो तुम्हें एक थोड़ा होलिस्टिक व्यू मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम टीम में काम करते हो, तो तुम्हें टीम हम्म। एक्टिविटीज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो सब का भी एक्सपोजर होता है। एंड एट दैट लेवल आई थिंक दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। इट्स एज हम्म। क्लोज टू अ स्टार्टअप आई वुड से हम्म। तुम्हारी बीटेक में। चलो, कुछ बेसिक मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि मतलब तुम यूएस में तो गए हो, मैं तो कभी गया नहीं। तो राइट। वहां पर जैसे अगर मान लो रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए क्या क्या रिकमेंड कर सकते हो लोगों के लिए, ऑन अ यार लाइटर नोट? आई मीन द वर्ल्ड, द स्काई इज द लिमिट। जब तुम यहाँ पे हो, हम्म। यू कैन डू हम्म। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। लाइक यहाँ पे हम्म। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज तुम्हारे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, जो इंडिया में रहता है हाँ। कि पेरेंट्स का है,
सोसाइटल हम्म रेस्ट्रिक्शन से कोई, या पैसे हम्म का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ये वो। यहाँ पे वो सारी हाँ, चीजें नहीं रहती है। लाइक कंपेयरिंग स्टूडेंट्स लाइफ, इवन इफ यू आर अ हम्म स्टूडेंट इन द यूएस, तुम्हारे पास हम्म ठीक ठाक पैसा रहेगा। अगर समझो तुमने कोई पार्ट टाइम जॉब किया या तुम्हें कोई इंटर्नशिप हम्म मिली, यू विल गेट इनफ मनी टू अफोर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जैसे हम्म यहाँ पे काफी लोग, कॉलेज में मैंने देखा था काफी लोग हाइकिंग एंड ट्रैवल काफी ज्यादा करते हैं, कि दे गो टू नेशनल पार्क्स, दे गो टू हाइक्स। यहाँ हम्म पे मतलब काफी वेरिड टेरेन है। यूएस इतना बड़ा है कि तुम पहाड़ जा सकते हम्म हो, तुम बीच जा सकते हो, कहीं भी हम्म जा सकते हो। हम्म तो रिक्रिएशन के लिए ट्रैवल एंड हाइकिंग काफी लोग करते हैं। फिर हम्म जितना मैंने आर्ट्स में इंडिया में देखा था उतना यहाँ पे नहीं देखा है, अनलेस तुम लाइक हम्म बहुत अच्छे सर्कल्स में हो। तो समझो लाइक हम्म मैं इंस्टी में म्यूजिक करता था काफी ज्यादा, तो वहाँ हाँ, पे अच्छा ग्रुप था एंड पीपल वर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी एक्सेसिबल। जबकि यहाँ हम्म पे उतना ओपन या उतना एक्सपैंडेड नहीं था क्लब। लाइक मुझे ढूंढने हम्म पड़े थे लोग, एंड उनके साथ भी मतलब फिर तुम जेल करते हो या नहीं करते हो उस पर डिपेंड करता है। हम्म बट इफ यू आर डूइंग अ like something personal like painting या ऐसा कुछ, that you can do very हम्म easily and you can monetize on it also very easily। तो एक्टिविटीज काफी सारी होती है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई से रिलेटेड भी, लाइक काफी लोग एस्ट्रोनॉमी हम्म, करते हैं। अच्छा, जैसे तो ये, अगर तुम्हें पवन याद होगा, पवन अब्बर करके, हाँ, चलो, तो हाँ, वो कनाडा में रहता है। तो ही डज अ लॉट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कीइंग, ये सब। तो ये हम्म सारी चीजों को एक्सेस है जो इंडिया में यूजुअली हम नहीं कर पाते हैं, एंड इजीली एक्सेस हम्म रहता है। तुम अगर कोई जा रहा है उसके साथ चले जाओ, तो हम्म तुम इजीली जा पाओगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उस पर। एंड हम्म बाकी तुम्हारा टाइम खाना बनाने में, बर्तन धोने में, हम्म घर के कामों में निकल हम्म जाता है। तो यहाँ पे मेड या हम्म, कुक नहीं रहता है कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अच्छा, ऐसा है। प्लस हाँ हाँ, यहाँ मेड या कुक नहीं रहता है। आई मीन हम्म यू कैन नॉट अफोर्ड, अगर चाहिए भी ऐसे मिलीनियर्स बिलीनियर्स के घर पे रहते हैं बस नौकर। यहाँ पे हम्म लेबर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। लाइक हम्म अगर तुम्हें समझो, तुम्हारा समझो टॉयलेट क्लॉग हो गया, तुम्हें वो भी अगर ठीक करना है, तुम्हें हम्म, 100-150 डॉलर लग जाएंगे उसके, एंड यू हैव टू लाइक मेक एन अच्छा, अपॉइंटमेंट, प्लान इट इन एडवांस। फिर यहाँ पे मेडिकल हम्म सिस्टम भी काफी डिफरेंट है। अगर तुम्हें कुछ हम्म मेडिकली हो गया तो इतने इजीली केयर नहीं मिलता जितना इंडिया में मिलता है, एंड यू नीड टू हम्म हैव इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग। सो मतलब यहाँ के जो जनरल लाइफ के एस्पेक्ट्स है, उसमें काफी ज्यादा हम्म टाइम चला जाता है तुम्हारा। और फिर जो हम्म थोड़ा बहुत बचता है उसमें तुम थोड़ा अपना चिल कर लो, हम्म। या कुछ साइड पे काम कर लो। अच्छा, तो क्या कहोगे, मतलब यूएस में रहना रिलेटिवली इजियर है या फिर इंडिया में, अगर कोई सिटीजन है इंडिया का तो उसके लिए इंडिया में ज्यादा बेटर रहेगा रहने के लिए? इंडिया ही बेटर है भाई। इफ यू टॉकिंग अच्छा, अबाउट ईज ऑफ लाइफ, हाँ, ईज ऑफ लाइफ इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे पास हर चीज एक्सेसिबल है, क्विकली एंड चीप। हम्म लाइक हम्म फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें अगर समझो दूध खत्म हो गया घर पे, इंडिया में यू कैन जस्ट हम्म, वॉक डाउन, 1 किलोमीटर के अंदर तुम्हें शॉप मिल जाएगी, कोई कोई छोटी हाँ, नुक्कड़ या कुछ तो मिल जाएगी, जहाँ पे तुम्हें चाय मिल जाएगी, दूध मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएगी। हम्म यहाँ हम्म पे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं होता है इन मोस्ट प्लेसेस, मोस्ट क्या मतलब आई वुड हम्म से 95% प्लेसेस में यू नीड टू हैव अ हम्म कार और यू नीड टू गेट एन उबर विच इज वेरी एक्सपेंसिव। और फिर हम्म स्पेसिफिक स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट हो गया, क्रोगर हो गया, हम्म जहाँ पे ग्रोसरीज मिलती है, तो तुम्हें मतलब वहां तक ट्रैवल करके जाना है, प्लान हम्म करके या ड्राइव करके हम्म या किसी को बोल के, एंड फिर एक्सपेंसिव हम्म भी होता है। तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे कम है डे टू डे लाइफ वाली। एंड फिर हम्म जैसे मैंने बोला कि मेड कुक वगैरह कुछ नहीं होता है, तो यू हैव टू डू ऑल हम्म दैट। अब वो मतलब हम्म तुम्हें लगता है कि ठीक है मैनेज हो जाएगा, बट दैट टेक्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्पेशली व्हेन यू आर लाइक हम्म लिविंग बाय योरसेल्फ। तो वो हम्म एक चीज है। थर्डली कि तुम्हें फ्रेंड्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, सब दूर दूर रहते हैं, इतने सोशल हम्म इवेंट्स नहीं होते हैं जितने इंडिया में। मतलब हम्म, इंडिया का कैसा कम्युनिटी बहुत सोशल है, इट हाँ, थ्राइव्स ऑन सोशल सोशल एस्पेक्ट, राइट, सोशल इंटरेक्शन। हम्म तो फ्रेंड्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हर चीज में तुम्हें फिर मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है। तो अगर तुम ईज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो, तो इंडिया हम्म बेटर है अगर तुम्हें आराम की जिंदगी चाहिए। बट अगर तुम्हें हम्म समझो इन टर्म्स ऑफ लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, करियर, हम्म फिर वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम्म यूएस में मुझे बेटर लगती है। बट ऑफ कोर्स फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर वीजा सिचुएशन। सो थोड़ी हम्म। एडेड कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे ये सारी चीजों में। अच्छा, मैं जैसे लोगों का, ज्यादातर लोग जो इंडिया से यूएस जाते हैं वो दे गो देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो राइट। फॉर अ नॉन citizen of US, how easy it is to get jobs there? Is it easier there to get a job, or is it easier in India to get a job? यार मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्रेट आंसर टू दिस, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, कि तुम्हारी इकोनॉमी हम्म कौन से सिचुएशन पे है। लाइक करंटली हम्म
getting a job as an immigrant in the US is very difficult, क्योंकि तुम्हें वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, एंड यहाँ पे इतना सरप्लस हो गया है इंजीनियर्स का या एम्प्लॉयज का सॉरी, जो ढूंढ रहे जॉब. Plus, you are competing with not just other Indians, but Chinese, Vietnamese, all kinds of people, Arabs, like हर nationality के लोग हैं, and mostly everyone who has attained a certain level या एक certain education, वही लोग आते हैं. तो मतलब the overall talent pool is very high up there. तो जैसे अगर तुम्हें कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो 100 लोगों को भी बहुत अच्छे से आती होगी वो, तो वो वाला एडवांटेज नहीं होता है तुम्हें, तो काफी लेवल प्लेइंग फील्ड है. और अभी मतलब जो पॉलिसीज चल रही है ट्रम्प वगैरह आने के बाद, उसके बाद इन जनरल मतलब हायरिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है. तुम्हें वीजा इश्यूज है, तुम्हारी नेशनलिटी को थोड़ा और ज्यादा देखा जाता है, तो वो सारे फैक्टर्स है. जबकि इंडिया में कैसे, अगर समझो तुमने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है, तो देयर विल बी लाइक मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब, मे बी नॉट द बेस्ट जॉब, बट यू विल डेफिनेटली हैव अ जॉब. So in that aspect, I think it's much easier to get a job in India at this point. रिगार्डिंग सैलरी थिंग, क्योंकि देखो अगर अगर ऑन लाइक फेस वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएस की सैलरी डेफिनेटली कम्स आउट टू बी हायर. फॉर एग्जांपल उसमें Yeah. डॉलर्स में हम मल्टीप्लाइड बाय 87 कर देंगे करंट इंडियन रुपी, एंड देन इट कम्स आउट टू बी अ लॉट ऑफ मनी. Correct. बट Correct. अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे पूछूं तो मतलब taking every expense, also taking everything into account, which place will be better for say Indian who want to go to Right. US solely for Right. the purpose of earning, then Yeah. which place will be better for that person? राइट. सो आई थिंक मतलब इसका सिंपल आंसर ये होगा कि स्टार्टिंग सैलरीज को देखते हैं अपन. स्टार्टिंग सैलरीज यूएस में अच्छी होती है कंपेयर टू इंडिया. सो लाइक इफ यू आर वेरी यंग एंड यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ मनी एट योर डिस्पोजल क्विकली, देन हाँ मतलब यूएस की सैलरी तुम्हें हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे आके तुम्हें स्टार्टिंग लेवल पे भी 100,000 मिल जाएंगे. जबकि इंडिया में समझो तुम एक नॉर्मल कॉलेज से या इवन आईआईटी से किए तो 8 से 10 लाख तुम्हें मिलेगा. 8 से 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आजकल तो मतलब 5-6 लाख से चालू होता है, राइट. सो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा सैलरी कम रहेगा in India. So compared to that, getting a job in the US will be helpful initially. बट फिर जैसे इंडिया में जो ग्रोथ होता है सैलरी का, वो ग्रोथ यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन वेयर यू लिव एंड व्हाट लेवल यू आर ऑन, एंड प्रमोशंस आर नॉट एज फास्ट एज इन इंडिया. लाइक इंडिया में तुम 8 लाख पे चालू किए, विद इन 6 months यू कैन शिफ्ट टू अ डबल सैलरी जॉब, अगेन विद इन 6 months यू कैन शिफ्ट टू अनदर डबल सैलरी जॉब. सो वो वाला ग्रोथ ज्यादा होता है इंडिया में, यहाँ पे उतना नहीं होता. यहाँ पे अगर तुम एक कंपनी में हो तो ईयर ऑन ईयर तुम्हारा मे बी 5%, 6%, 9% मैक्स ऐसा होगा. तो क्योंकि तुम्हारा वो रीजन स्पेसिफिक होता है, दे गिव यू इनफ कि तुम कंफर्टेबली रह पाओ यहाँ पे. ऑफ कोर्स एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है. इंडिया में यू कैन सर्वाइव ऑन वेरी लो मनी, यहाँ पे नॉट नेसेसरीली, क्योंकि तुम्हारा हाउसिंग काफी एक्सपेंसिव है, लाइक 20-30% और इवन मोर तुम्हारा हाउसिंग में जाता है. फिर तुम्हारा इंश्योरेंस होता है, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है उसका ईएमआई होता है. फिर तुम्हारे टैक्सेस भी काफी होते हैं यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया. द टैक्सेस आर मोर हियर क्योंकि यू गेट दोज अमेनिटीज. बट व्हेन यू सी परचेसिंग पावर, यहाँ पे तुम्हारा वो ज्यादा होता है. लाइक यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है काफी, क्रेडिट सिस्टम इज वेरी प्रेवलेंट. इंडिया में इनिशियली तुम क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेते हो, लाइक यू वेट फॉर सम टाइम, या इन जनरल वो उतना कल्चर नहीं है. तो हाँ मतलब परचेसिंग पावर यहाँ पे ज्यादा है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड आई वांट टू डू अ यूरो ट्रिप, आई कैन इजीली डू दैट ऑन माय क्रेडिट कार्ड. 2-3 हजार डॉलर में हो जाएगा. जबकि अगर तुम इंडिया में हो तो यू विल सेव थ्रू योर डेबिटेड मनी, यू विल हैव टू सेव 2-3 लाख रुपीस एंड देन प्लान, एंड मे बी तुम 2 साल में एक बार जा पाओगे या व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन योर अर्निंग पोटेंशियल. तो परचेसिंग पावर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है. बट अगर तुम फिर एडवांस करके करियर में, जैसे तुम 7-8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया और फिर अभी तुम्हें आराम की जिंदगी चाहिए, अभी पैसा उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, उस स्टेज पे आई थिंक इंडिया इज मच मच बेटर, क्योंकि यू विल हैव सेव्ड सम मनी. इंडिया में तुम जाओगे तो तुम्हें, बिकॉज यू हैव यूएस एक्सपीरियंस, तुम्हें काफी हाई सैलरी मिल जाएगी कंपेयर टू एवरीवन एल्स. लाइक अगर तुम्हें इंडिया में समझो 50-60 लाख भी मिल गया एट दैट लेवल, दैट्स लाइक मोर देन इनफ मनी टू सेव, टू इन्वेस्ट and to meet all your luxuries. So if you want to get rich quick, I think starting career के starting में it's good to be in a job in the US, but at a later point India is a better option for an Indian at least. Okay. नहीं, ये इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज उसी को पता होती है जो यूएस में है. तो आई Correct. थिंक अगर यहाँ ये पहले से पता होगा तो पीपल कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग यूएस करियर के लिए उतना नहीं जाते हैं, बट रादर फॉर लिविंग अ वेरी comfy लाइफ, which is a Yeah, picture which yeah. most of the foreign media has Yeah. painted for the
Yeah. डेवलप्ड कंट्री, बट उतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब द इनर थिंग्स आर नेवर एक्सपोज्ड। सो Yeah. अगर जो वहां रहते हैं तो उसको अगर पता है तो इट्स बेटर। मतलब अच्छा हाँ, फिर इट्स नॉट अबाउट comfy life, it's about standard of life, I would say. Standard of life है अच्छा है कि तुम्हें रास्ते अच्छे मिलेंगे, तुम्हें हर चीज ऑर्गेनाइज मिलेगी, कचरा उतना नहीं मिलेगा, you can afford better products maybe, but after certain point इन सब चीज का मतलब मोह चला जाता है थोड़ा। हाँ। बिकॉज मतलब ठीक है, मतलब वो है, बट व्हेन यू आर इन योर होम आई डोंट थिंक दैट विल मैटर टू मच, बिकॉज फॉर Exactly. वेकेशन you'll go for vacation, you'll go at some other place, you will not go for the public to the public place. Exactly. Going to spend most of the time in your workplace as well as your home only. Home. So I think Exactly. these things are something which should be very good for living a very Yeah. better life, at least. I'm not saying very Correct. like excellent life, but better life. So हाँ. last question ये है कि just advice for students who want to pursue aerospace, that's it. Right. So मतलब हाँ, if you talk about 11 12th वाले students, as I said पहले कि focus on your basics a lot, physics and math. Physics and math पे बहुत ज़्यादा focus करो, have very good command on calculus, on physics, like laws of physics, laws of motion, etc. So have your basic tools ready at this point. And अगर specifically aerospace में ही जाना है, there are many options. Don't think it's just gonna be कि you will work on a plane or you will work on designing a plane. Aerospace से related हजार चीजें हैं, if not लाख, हजार चीजें। So at this point just focus on basics and keep an open mind कि ये चीज अगर directly plane से related नहीं है, does not mean it won't mean an aerospace career. So aerospace से मतलब अगर तुम structures में हो तो it can mean structural integrity, it can mean making a software, it can mean process improvement, it can mean industrial design and stuff like that. So काफी ज्यादा चीजें हैं at this point. Just focus on your basics and keep an open mind. I think that's the best advice I can give. अपने को एक बॉक्स में मत डाल दो कि यार मैं यही हूँ और मुझे यही करना है, but just keep an open mind and then yeah, network with as many people as you can in the field as well as similar minded people कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका career path कैसे रहा है, so that you get better informed जब तुम आगे अपने options देखोगे। थैंक यू वेरी मच पलाश, मतलब sure. इतना इंसाइट देने के लिए। आई थिंक एवरीवन विल लव दिस। और आई थिंक इसके बारे में, एरोस्पेस के बारे में लगभग किसी को कुछ पता ही नहीं था, और काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया था कि मतलब एक फुल होलिस्टिक वीडियो बन जाए, जिसमें वन स्टॉप वीडियो, जिसमें सब लोग जान सकें अगर एरोस्पेस को। Yeah. No, I'm happy to help. Thanks, man.